Welcome back, my dear students. So we are going to start with chapter 1, that is Introduction to Strategic Management. And before we proceed, first I hope you all have a pen, paper, notebook with you, because जैसे जैसे हम पढ़ते जाएं करना पड़ेगा कि Welcome back, my dear students. So we are going to start with chapter 1, that is Introduction to Strategic Management. And before we proceed, first I hope you all have a pen, paper, notebook with you, because जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, you have to keep on noting down the key points. You're not simply going to watch and listen, but you're also going to write. Writing practice is very important so that it also becomes easier for you to revise. So now let's start with chapter 1, and the name of chapter 1 is Introduction to Strategic Management. So in this chapter we are going to cover some basic concepts related to strategic management, जैसे कि meaning क्या होता है, strategic management का nature क्या है, मतलब हम यहाँ पे basically management का concept समझने वाले हैं, because as you know that strategic management is made up of two words, strategy and management. So पहले हम management का meaning समझेंगे, उसके बाद हम strategy का मतलब समझने वाले हैं, और एक concept है concept of proactive and reactive strategy, ये भी हम strategic management के अंदर ही डिस्कस करने वाले हैं. Then we are going to discuss the concept of strategic intent and finally strategic levels in management. And यहाँ पे भी एक सब टॉपिक है which is networking of relationships between these three levels, वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. So let's start with the basic meaning and nature of strategic management. What is strategic management? So ये समझने के लिए हमें strategic management की जो दो important terms हैं, strategy and management, ये समझना पड़ेगा. First we are going to start with the concept of management. अब आपके सिलेबस में management को तीन context में explain किया गया है. So according to the first concept, management refers to the key group. Key group मतलब group of important individuals who are in charge of organization affairs. So organization में जो भी affairs हो रहे हैं, जो भी activities चल रही हैं, जो भी functions perform करे जा रहे हैं, उन्हें संभालने के लिए, उन्हें manage करने के लिए जो important individuals होते हैं, key group of individuals, important group of individuals, उन्हें हम कहते हैं management. So management एक chief organ है. Chief organ मतलब very important part of organizations, because ये किस चीज में help कर रहा है? First, ये organization को purposeful बनाता है, productive बनाता है. Purposeful मतलब organization का क्या goal है, क्या objective है, वो define करने में management help करता है. At the same time उसे productive बनाता है, मतलब उस purpose को fulfill करने के लिए काम किया जाता है, कुछ actions लिए जाते हैं. Secondly, management सारे resources जो कि disorganized होते हैं, अलग-अलग resources, काम करने के लिए हमें different resources चाहिए, like manpower, money, material, technology, इन सब resources को arrange करना, इन सब resources को organize करना, इकट्ठा करना, so that company productive बन सके और अपने purpose को achieve कर सके. सिर्फ इन resources को integrate नहीं करना है, arrange नहीं करना है, organize नहीं करना है, इन resources को efficiently और effectively भी use करना है कि हम minimum resources से maximum output generate कर पाएं. And management help करता है, facilitate करना मतलब help करना, organization में changes लाने के लिए और उन changes से adapt करने के लिए. Second perspective के according, management is a set of interrelated functions and processes. So this is the basic definition जो हम हमेशा से समझते आए हैं कि जो management है उसमें कुछ interrelated functions perform किए जा रहे हैं, कुछ processes जो कि आपस में interrelated हैं, different हैं, wide ranging functions perform किए जा रहे हैं. At the same time, जो wide ranging मतलब different functions हैं, ये different functions interrelated भी हैं, एक दूसरे पे depend भी करते हैं. वो कौन से functions हैं? Planning, organizing, directing, staffing and controlling. सबसे पहले आप plan बनाओगे, planning में आप अपने लिए goals determine करते हो, फिर उन goals को achieve करने के लिए, काम करने के लिए आप पूरी organization में responsibilities, roles define करते हैं, एक organization structure design करते हैं, कौन क्या काम करेगा, कौन किसको report करेगा, किसकी क्या responsibility है, accountability, पूरा organization structure design करते हैं, काम करने के लिए resources को लाया जाता है, arrange किया जाता है, mobilize किया जाता है, और फिर different tasks करने के लिए, activities perform करने के लिए उन resources को different activities में allocate किया जाएगा. और ये ensure करने के लिए कि वो सारी activities, सारे processes, सारा काम सही ढंग से चल रहा है, control system को भी install किया जाता है, मतलब controls लगाए जाते हैं. जैसे supervisors workers के काम को देखेंगे कि क्या वो अपने targets achieve कर रहे हैं, क्या काम सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा तो accordingly corrective actions लिए जाते हैं. So management ये सारे important functions perform करने में भी help करता है. And third perspective and the last perspective related to management is that management एक influence process भी है. अब काम करवाना है तो आपको influence करना पड़ेगा, दूसरों को convince करना पड़ेगा कि काम सही तरीके से करो. So management is a process of influence because it help करता है to make things happen. सिर्फ planning करना is not everything, right? सिर्फ resources arrange कर लेना, उन्हें organize कर लेना is not everything. दूसरों से काम करवाना है तो उन्हें influence करना पड़ेगा, उन्हें guide करना पड़ेगा, उन्हें motivate करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव किया जाए. ऑल्सो टू गेन कमांड ओवर द फिनोमेना, किसी भी तरह की सिचुएशन को कमांड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंड्यूसिंग एंड डायरेक्टिंग इवेंट्स एंड पीपल इन अ पर्टिकुलर मैनर. लोगों को, वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को डायरेक्ट करना, इंड्यूस करना, स्टिमुलेट करना, मोटिवेट करना कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करे, अपने गोल्स को अचीव करे. उसके लिए मैनेजमेंट को एक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी को कन्विंस करना, पर्सुएट करना कि वो एक्ट करे और गोल्स को अचीव करे. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्लूड्स पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज. अब अगर मैनेजमेंट को दूसरों से काम करवाना है, इफ यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन, तो काम करने के लिए रिस्पांसिबिलिटीज के साथ साथ आपको पावर देनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी. काम करवाने के लिए कॉम्पिटेंस की जरूरत पड़ेगी, मतलब कुछ स्किल्स की, एबिलिटीज की, नॉलेज की जरूरत पड़ेगी. एट द सेम टाइम रिसोर्सेज की जरूरत तो पड़ेगी. एंड दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को टू कोप विद, अडैप्ट एंड एडजस्ट टू बिहेवियर और चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस से डील करने के लिए, अडैप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ती है. सो ये जो पूरा टॉपिक है, दिस इज जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs. और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट थ्री कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है: की ग्रुप इन चार्ज ऑफ अफेयर्स, सेकंड सेट ऑफ वाइड रेंजिंग इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस. सो ये हो गया मैनेजमेंट का कांसेप्ट. नाउ लेट्स डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी क्या होता है? एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बिकॉज़ द एंटायर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड स्ट्रेटजी. ऑल्दो एज सच हमसे डायरेक्टली स्ट्रेटजी का मीनिंग पूछा जाए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में, चांसेस कम है. ये टॉपिक भी MCQ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट क्योंकि इस वर्ड का यूज हम बार-बार करने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रेटजी. नाउ ये कुछ दो डेफिनेशंस हैं गिवन बाय आइगर एंड सर्फ, विलियम एफ ब्लूइक, या बाद में पढ़ेंगे. चलिए अब समझते हैं स्ट्रेटजी का मीनिंग क्या है. तो अब स्ट्रेटजी को भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में एक्सप्लेन किया गया है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है. सबसे पहले हम वो पर्सपेक्टिव समझेंगे जहां से स्ट्रेटजी की शुरुआत हुई, जहां पे स्ट्रेटजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया. सो स्ट्रेटजी को एक वॉर के कॉन्टेक्स्ट में पहले यूज किया जाता था. स्ट्रेटजी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एंड द वर्ड इज स्ट्रेटेगोस, जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ जनरलशिप, व्हिच मींस दैट जब कंट्रीज में वॉर होती है, जो आर्मी के जनरल होते हैं वो क्या प्लान लेकर आते हैं, उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है इन ऑर्डर टू बीट देयर राइवल कंट्री. वो क्या प्लान बनाते हैं सो दैट वो दूसरे को हरा पाए और खुद जीत पाए. सो वॉर के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले स्ट्रेटजी वर्ड का यूज किया गया था. अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए और समझते हैं स्ट्रेटजी को. स्ट्रेटजी क्या होता है? स्ट्रेटजी इज रिस्पोंडिंग टू डायनामिक एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है. टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लॉज चेंज हो जाते हैं, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं, नया कॉम्पिटिटर आ जाता है. सो इन सब एक्सटर्नल
फोर्सेस जो कि डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही हैं, हॉस्टाइल हैं, कभी आपके फेवर में जाएंगी, कभी आपके अगेंस्ट जाएंगी, इन सभी फोर्सेस से डील करने के लिए, इन सभी फोर्सेस के अगेंस्ट एक रिएक्शन देने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए स्ट्रैटेजी का यूज होता है। जैसे टोयोटा कंपनी ने अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीजल पर खत्म करने के लिए दे केम अप विद लिक्विड हाइड्रोजन बेस्ड कार्स। तो ये क्यों किया उन्होंने? बिकॉज एक्सटर्नल एनवायरमेंट से डील करना है, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की डिपेंडेंसी को खत्म करना है। बिकॉज अगर एनवायरमेंट में सर्वाइव करना है, लंबे टाइम तक इंडस्ट्री में सस्टेन करना है, पैसा कमाना है, तो उन्हें एक स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। सो जो कि अभी हमने समझा, लॉन्ग रेंज मतलब लॉन्ग टर्म एंड ब्लूप्रिंट का मतलब प्लान। सो स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है, किस चीज का? जो कि कंपनी को हेल्प करेगा एक डिजायर्ड इमेज क्रिएट करने में कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। डिजायर्ड इमेज का मतलब व्हाट यू वांट टू बी इन द फ्यूचर, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है। जैसे रिलायंस की डिजायर्ड इमेज क्या थी कि हमें टेलीकॉम सेक्टर में भी जाना है, एक सुपर पावर वहां पर बनना है। सेकंड, डायरेक्शन मतलब अब वो डिजायर्ड इमेज अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, व्हाट इट वांट्स टू डू। तो अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सुपर पावर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने जियो लॉन्च किया, टैरिफ्स बहुत कम रखे, फ्री में सिम्स बांटी, राइट। तो ये सारे एक्शंस उन्होंने लिए सो दैट वो इस इमेज को फुलफिल कर पाए एंड अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। डेस्टिनेशन का मतलब फ्यूचर में हमें क्या करना है, वेयर इट वांट्स टू गो, किस लेवल तक अपनी कंपनी को फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं, दैट इज योर डेस्टिनेशन। सो ये 3 Ds अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म प्लान है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। गेम में क्या होता है, देयर आर 2 राइवल्स, 2 टीम्स, 2 ओपोनेंट्स, और ऑब्वियसली वो दोनों ओपोनेंट्स क्या करना चाहेंगे, एक दूसरे से आगे निकलना चाहेंगे। तो बिजनेस में भी तो यही है, अपने राइवल से, राइवल कंपटीटर से, राइवल कंपनी से आगे निकलना चाह रहे हो, अपनी पोजीशन बेटर करना चाह रहे हो। इस तरीके से आप अपने ऑपरेशंस, अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट करना चाह रहे हो कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ, कस्टमर्स को सैटिस्फाई कर पाओ। क्योंकि अगर कस्टमर सैटिस्फाइड तो आप भी सक्सेसफुली कंपीट कर पाओगे, कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आप अपने कंपटीटर से आगे निकलेंगे, उन्हें बीट कर पाएंगे। जो भी आपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, विजन बनाई है, एम देखा है, उसे अचीव कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। जैसे कोका कोला की स्ट्रैटेजी क्या है कि उन्हें अपनी मार्केट पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए कस्टमर्स पर ध्यान देना पड़ेगा, तो उनका पूरा फोकस रहता है कस्टमर्स पर, कस्टमर्स को कैसे सैटिस्फाई किया जाए। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड डिजाइन एंड एक्शन, व्हिच मींस दैट स्ट्रैटेजी एक ऐसा एक्शन प्लान है जो कि सबको यूनिफाई करता है इन द ऑर्गेनाइजेशन। एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर काम करते हैं टू अचीव द मेजर गोल्स, टू अचीव द कॉमन गोल्स, टू गेन कमांड ओवर सिचुएशन। किसी भी तरह का चैलेंज आता है तो मिलकर हमें उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है एंड एक एडवांटेजियस पोजीशन सिक्योर करनी है, ऐसी पोजीशन जहां पे आप अपने राइवल से आगे हैं। जैसे वॉलमार्ट एक अच्छी पोजीशन अटेन करने के लिए क्या करते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, कॉस्ट लीडरशिप की, हमें अपने प्राइसेस अपने राइवल से कम रखने हैं, एवरीडे लो प्राइसेस, दैट इज देयर स्ट्रैटेजी। सो वॉलमार्ट में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉइज हैं, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट कटिंग करनी है, कॉस्ट कम रखनी है, तभी हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। सो दीस वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी। अब ये दोनों टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करे हैं, स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट, दिस इज जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू बिल्ड एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि स्ट्रैटेजी एक्चुअली होती क्या है। अदर देन दैट वी कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट इट इन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, कांसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी का मतलब हमने समझ लिया, स्ट्रैटेजी होता है एक लॉन्ग टर्म प्लान, ऐसा प्लान जो आपको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, कैसे कंपटीटर को बीट करना है, कैसे एक एडवांटेजियस पोजीशन अटेन करनी है, उसमें हेल्प करता है। एंड मैनेजमेंट भी हमें पता है, मैनेजमेंट में हम काफी सारे इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज स्ट्रैटेजीज को मैनेज करना। अब जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजीज बनाने से लेकर, फॉर्मुलेट करने से लेकर, स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना, स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट करना, फिर उन्हें इवैल्यूएट करना, कंट्रोल करना, ये देखना कि क्या हमने अपनी स्ट्रैटेजी से ऑब्जेक्टिव्स अटेन करे, नहीं करे तो करेक्टिव एक्शंस लेना। सो दैट इज व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? एक मैनेजरियल प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें हम स्ट्रैटेजिक विजन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने लिए, स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और करेक्टिव एक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं जब भी जरूरत पड़े। मतलब ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट करना और उन्हें कंट्रोल करने की। सो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है विजन सेट करने से। विजन का मतलब होता है फ्यूचर पोजीशन। एक कंपनी अपने आप को फ्यूचर में कहां देखती है, सबसे पहले कंपनी अपने लिए एक विजन देखती है, फिर उस विजन को अचीव करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है। वैसे इससे पहले एक मिशन भी बनाई जाती है। फ्यूचर में जाने के लिए आपका कुछ करंट पर्पस होना चाहिए, आप प्रेजेंटली कुछ करेंगे, उसे हम कहते हैं मिशन। सो बेसिकली वो फर्स्ट स्टेप में इंक्लूड हो जाता है स्ट्रैटेजिक विजन बनाना और मिशन बनाना। फिर हम सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अपनी विजन और मिशन को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, फिर एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करी जाती है, इंप्लीमेंट करी जाती है और फिर उसे इवैल्यूएट किया जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में कुछ डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करी जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले विजन और मिशन बनाई जाती है, विजन फ्यूचर बताती है और मिशन कंपनी का करंट पर्पस क्या है, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है, आप कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की कौन सी नीड्स को आप फुलफिल कर रहे हैं, मतलब आपका बिजनेस क्या है, हमें वो मिशन से पता लगता है। अब हमें कहां तक जाना है, हमारा बिजनेस क्या होगा, ये सब कुछ डिटरमाइन करने के लिए स्ट्रैटेजिक एनालिसिस किया जाता है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस मतलब एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्योंकि हमें बनानी है, उसके लिए पहले हमें एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ता है। एनवायरनमेंट कैन बी इंटरनल आल्सो एंड एनवायरनमेंट कैन बी एक्सटर्नल आल्सो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स दोस फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजीज, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड्स, ये सब आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंपनी बेसिकली अपने लिए क्या कर रही है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही है और साथ ही साथ देख रही है कि क्या हमारे लिए कोई थ्रेट्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। और अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करें, सो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बिकॉज़ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ग्रैब करने के लिए और ये जो थ्रेट्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनसे डील करने के लिए इंटरनली कंपनी नीड्स टू बी स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स में कैपेबिलिटीज, नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली आप स्ट्रांग होनी चाहिए हो। सो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही एनवायरनमेंट्स को मैच करके एनालाइज करके कंपनीज अपने लिए स्ट्रैटेजीज ढूंढ पाती हैं कि हमारे लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं। दिस इंटायर कांसेप्ट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। फिर कंपनीज अपने लिए शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करती हैं, एक अच्छी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करती हैं, सिलेक्ट करती हैं। सो बेसिकली एनवायरनमेंट को एनालाइज करके आपके पास जो भी ऑप्शंस आई हैं, उन ऑप्शंस में से आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, मतलब उसे एग्जीक्यूट करते हैं एंड फाइनली अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, स्ट्रैटेजीज को चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट करे क्या हमने वो अचीव किए, जो विजन हमने अपने लिए सेट करी थी, मिशन जो थी हमारी, क्या हम उसे अचीव कर पा रहे हैं। इफ नॉट देन हम अपने लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। कभी-कभी कंपनीज को पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है या अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। सो दिस इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बेसिकली एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी अच्छी बनानी है, उसे इंप्लीमेंट करना है और उसे फिर इवैल्यूएट करना है, कंट्रोल करना है कि हम जो चाह रहे थे अपनी स्ट्रैटेजी से वो अचीव करें। अब कंपनीज ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस, इतनी सारी एक्टिविटीज कंपनीज को करनी पड़ती है। पर्पस क्या है? पर्पस यही है, क्या पर्पस होता है स्ट्रैटेजी का, क्यों हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कंपटीटर को बीट करना है। और एनवायरनमेंट में जितनी भी फोर्सेस हैं जो कंपनी को रोक सकती हैं, हमारे रास्ते में आ सकती हैं, हमें सक्सेसफुल होने से रोक सकती हैं, हमें उन फोर्सेस से डील करना है। हमें एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ साथ खुद को भी चेंज करना है। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट इज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहना है, कॉम्पिटिटर्स को ओवर पावर करना है और मार्केट में डोमिनेंस गेन करनी है। एक अच्छी पोजीशन, सबसे स्ट्रांग पोजीशन इन द मार्केट आप गेन करना चाहते हैं, मतलब आप मार्केट में लीडर बनना चाहते हैं। यू वांट सबसे ज्यादा मार्केट शेयर आपका हो, सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स आपने पूरी इंडस्ट्री में कमाए हो। और ये कब होगा? जब आप अपना दूसरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे, फर्म को गाइड करेंगे सक्सेसफुली थ्रू चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज को हेल्प करती है एनवायरनमेंट के साथ साथ चेंज होने में। अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होंगे तो क्या होगा? जो नोकिया के साथ हुआ था, नोकिया एक टाइम पर नंबर 1 कंपनी थी, बट एक टाइम आया दैट इट कंप्लीटली डिसअपीयर्ड बिकॉज़ नोकिया ने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं किया। ये पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलती रही, जहां पर एंड्रॉइड आ चुका था, स्मार्टफोन्स आ चुके थे, नोकिया भी अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा था। सिमिलर टू दिस कोडेक कंपनी के साथ भी ये हुआ था। कोडेक कंपनी वाज
वेरी फेमस, इट वाज अ टॉप मोस्ट कंपनी फॉर दोस ओल्ड कैमरास, जैसे हम पहले फोटोग्राफ्स खींचते थे रील डालकर। बट अगेन इन्होंने भी अपग्रेड नहीं किया, ये इन्होंने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ व्हिच ये पीछे रह गए और इनकी जो राइवल कंपनीज थी वो आगे निकल गई। सो आप समझ रहे हो एनवायरमेंट में जो हो रहा है ना, कंपनीज को उसी के साथ साथ चलना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो फिर आप ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर पाओगे। आप पीछे रह गए तो मतलब कॉम्पिटिटर्स आगे निकल गए, कस्टमर्स उनकी ज्यादा सेल्स, उनकी ज्यादा रेवेन्यूज, उनकी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है कि आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहो, इवैल्यूएट करते रहो एक्सटर्नल एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हमारे लिए क्या चैलेंज आ सकता है इन द एनवायरमेंट, सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेंथ्स को इंक्रीज करते रहो, अपनी स्ट्रेंथ्स डेवलप करते रहो, ताकि आप इन थ्रेट से लड़ पाओ और इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सको। सो बेसिकली स्वॉट एनालिसिस कॉन्स्टेंटली हमें करते रहना है। स्वॉट एनालिसिस मतलब एसडब्ल्यू मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, इंटरनल एनवायरमेंट को चेक करते रहो, ओटी मतलब अपॉर्चुनिटी थ्रेट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट को कंटीन्यूअसली हमें चेक करते रहना है। पर्पस क्या है? ताकि हम स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस गेन कर पाएं। मतलब आपको इस तरीके से कंपीट करना है, आपको ऐसी कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी बनानी है जो आपको इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करे, सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए खुद को इन द इंडस्ट्री की, कहीं आप इंडस्ट्री से बाहर ना निकल जाओ, आपको अपना बिजनेस ही ना बंद करना पड़े। सो आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो कॉन्स्टेंटली एनवायरमेंट को इवैल्यूएट करते जाओ और उसके साथ चेंजेस करते रहो, एनवायरमेंट से डील करने के लिए एक्टिव स्ट्रैटेजीज बनाते रहो, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे और ग्रो कर पाओगे। सो दिस इज द ओवरऑल कांसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का कांसेप्ट आपने समझ लिया है, अब हम उसकी इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं। सो क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की? व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज दीस डेज स्पेसिफिकली? फर्स्ट, इट गिव्स डायरेक्शन टू कंपनी टू मूव अहेड। ये कंपनीज की हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए। आगे कहां बढ़ना है? टुवर्ड्स योर विजन। आप अपने लिए जो डिजायर कर रहे हो, आपने अपने लिए जो एक विजन देखी है, जो गोल्स आपने अपने लिए सेट करे हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, जो मिशन आपकी है, आप कस्टमर्स के लिए जो करना चाहते हैं वो करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। बिकॉज इसके थ्रू कंपनीज अपने लिए गोल्स डिटरमिन कर पाती हैं, क्योंकि आप एनवायरमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज कर रहे हो, इंटरनल एनवायरमेंट को भी कंपेयर कर रहे हो और फिर जाके आप अपने लिए रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, रियलिस्टिक गोल सेट कर पाते हो जो आपको विजन अचीव करने में हेल्प करता है। सेकंडली, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज को हेल्प करता है प्रोएक्टिव बनने के लिए। प्रोएक्टिव मतलब आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। सो ऐसे कंपनीज जो सिर्फ बैठ के एनवायरमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर रही हैं, बट अभी से एक्शंस ले रही हैं इन ऑर्डर टू डील विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तरह से कंपनीज को उनकी डेस्टिनी कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है। सब कुछ हम किस्मत पे नहीं छोड़ देते। कंपनीज भी ऐसा बोलने लग जाए कि जो होगा देखा जाएगा, नहीं, उन्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे, उन्हें प्लानिंग करनी पड़ेगी, डेलिबरेटली सोच समझ के एनवायरमेंट को एनालाइज करके कि क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, हम खुद को अभी से प्रिपेयर कर लेते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, अभी से खुद को प्रिपेयर कर लेते हैं, क्या आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को फाइनेंशियली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम उस नई टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड कर पाएं। सो एनवायरमेंट की जो वेगरीज है, मतलब एनवायरमेंट में जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनसे डील करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करती है। देन नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस। मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज को हेल्प करता है, उनको एक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू वो सभी मेजर डिसीजंस ले पा रहे हैं। किस तरह के डिसीजंस, कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, किन प्रोडक्ट्स में डील करना है, कौन कौन सी मार्केट्स में हमें ऑपरेट करना है, क्या हमें सिर्फ डोमेस्टिकली ऑपरेट करना है या हमें इंटरनेशनली भी काम करना है, और हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए क्या प्रोडक्ट बनाने हैं या सबके लिए बनाने हैं, हमारी कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होंगी, कहां होंगी, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, अगर हमारे मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो किस बिजनेस में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। सो ये सारी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। ओवरऑल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करता है ऑन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ऑन क्रूशियल एस्पेक्ट्स जो भी कंपनी करना चाह रही है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर गुड फ्यूचर्स। बेसिकली एक पाथ फाइंडर की तरह स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का पाथ क्लियर कर रहा है, मतलब उन्हें उनके फ्यूचर तक ले जाने के लिए वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के मीनिंग में समझा, दैट हम उसमें स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं, एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से पहले उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लें। फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है हमें, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो और उसे ग्रैब करो सो दैट आप एक अच्छी पोजीशन पर हो इन द मार्केट। सो उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड उन अपॉर्चुनिटीज तक कैसे पहुंचना है ये डिटरमिन करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज को हेल्प करता है, उन्हें उनके फ्यूचर को बेटर तरीके से फेस करने में हेल्प करता है बाय एक्टिंग एज अ पाथ फाइंडर। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व्स एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज को, यहाँ पे कॉर्पोरेट का मतलब है कंपनीज को हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग अ डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, जब कोई वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी फाइट करती है, दैट इज हाउ आवर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आउटसाइडर्स, फ्रॉम एनी इन्वेजन। वैसे ही कंपनीज का डिफेंस मैकेनिज्म कौन है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। वो कंपनीज को डिफेंड करता है, कंपनीज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, गड्ढों में गिरने से हेल्प करता है। पिटफॉल्स मतलब जो हमारे रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे आते हैं, मतलब ऑब्स्टिकल्स आती हैं, रोड ब्लॉक्स आते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स, उन थ्रेट्स, उन चैलेंजेस से कैसे हमें आगे निकलना है, उसमें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है कि कंपनीज कोई गलती ना कर दें, कोई गलत चॉइस ना कर दें और स्ट्रैटेजीज, एक गलत डिसीजन ना ले लें, जिस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए था उसे छोड़कर किसी और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया। सो ऑर्गेनाइजेशंस को वो हेल्प करता है कॉस्टली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में और सही डिसीजंस लेने में, सही चॉइसेस लेने में कि कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है, कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, किसमें इन्वेस्ट नहीं करना। सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे उनका डिफेंस मैकेनिज्म बन रहा है, उनको हेल्प करता है कोर कॉम्पिटेंसीज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस डेवलप करने में। कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं कंपनी की यूनिक स्ट्रेंथ्स, इट इज अ ब्लेंड ऑफ, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्किल्स, नॉलेज, रिसोर्सेज जो आपको फर्दर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगी? थ्रू दीस कोर कॉम्पिटेंसीज। कुछ यूनिक आप कर रहे हो, आपकी कुछ ऐसी डिफरेंट स्किल्स हैं जो दूसरों के पास नहीं है, जिसके कारण आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है जो आपको सर्वाइवल में और ग्रोथ में दोनों में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंपनीज को हेल्प करता है लॉन्जेविटी एनहांस करने में, बिजनेस की लॉन्ग लाइफ के लिए। कैसे? बिकॉज वो हेल्प कर रहा है बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव और डायनामिक एनवायरनमेंट से फाइट करने के लिए, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस से डील करने के लिए पहले से आप अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हो, तो आपको समझ में आता है कि मेरा क्या स्टैंड होने वाला है एक इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में मेरे साथ और बहुत सारी सिमिलर फर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति बोलती है कि भाई मेरे बहुत सारे राइवल्स हैं, अब उन राइवल से मुझे कैसे कम्पीट करना है, मुझे कैसे क्लियर स्टैंड लेना है, एक अच्छी डोमिनेटिंग पोजीशन पर आना है, उसके लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में हेल्प करती है। क्योंकि आप सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करते हो कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए सूटेबल एक्शंस भी ले रहे हो। फाइनली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है कंपनीज को टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। यही पॉइंट जो एक पॉइंट में एज एक्सप्लेनेशन था, अब ये हमारा सेपरेट मेन पॉइंट है। कंपनीज को यूनिक स्ट्रेंथ्स, कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। यही कोर कॉम्पिटेंसीज, यही यूनिक स्ट्रेंथ्स कंपनीज को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देंगी और उन्हें सर्वाइव और ग्रो करने में हेल्प करेंगी। जैसे एप्पल आज एक नंबर 1 कंपनी क्यों है? बिकॉज उनके पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, देयर टेक्नोलॉजी, द वे दे डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स, देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। सो टुगेदर ऑल दीस यूनिक स्ट्रेंथ्स एंड कैपेबिलिटीज व्हेन कंबाइंड टुगेदर उन्हें हम कहते हैं कोर कॉम्पिटेंसीज। सो स्टूडेंट्स, आई होप द कांसेप्ट इज क्लियर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ऑल आर रिलेटेड टू बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, बट द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे है
strategic management helps organization to work through changes in the environment to gain competitive advantage. In light of the statement, discuss the benefits. करने आपको benefits से discuss है, लेकिन पहले आपको ये statement लिखनी पड़ेगी जो question में दी गई है. Second में भी यही कहा गया है, each organization must build its competitive advantage keeping in mind business warfare. मतलब अपने rivals को ध्यान में रखकर आपको इस तरह से strategy बनानी है कि competitive advantage gain कर पाएं. And this can be done by following the process of strategic management. Considering the statement, explain the major benefits of strategic management. Again आप ये पूरा का पूरा statement as it is लिख देंगे. Strategic management को थोड़ा सा और define करेंगे, उसका मतलब लिखेंगे and फिर उसके benefits. Third is what is strategic management? Direct question. What benefits accrue by following a strategic approach to managing? And as always, first the introduction. तो strategic management क्या होता है? It involves developing the company vision, environmental scanning करना, strategic analysis जिसको हम बोलते हैं, फिर strategy को formulate करना, implement करना and evaluate and control करना. इसका emphasis कहाँ होता है? On monitoring and evaluation of external opportunities and threats in light of strengths and weaknesses and accordingly फिर हम strategies devise करते हैं for survival and growth. इससे क्या होता है? Strategic management से main purpose क्या है? Competitive advantage gain कर पाते हैं to outperform the competitors. Also इसके through company successfully deal कर पाती है with all the changes in the environment. Now the benefits. So क्या benefits होते हैं? Strategic management companies को direction देता है to move ahead क्योंकि इसके through companies अपने लिए goals determine कर पाती हैं, mission formulate करती हैं. Secondly, strategic management organizations को help करता है to become more proactive instead of reactive so that आप अपने future को better तरीके से meet कर पाएं, destiny को control कर पाएं in a better manner. आपको सिर्फ बैठकर देखना नहीं है. You don't have to be just a spectator. ताकि आप actions भी ले पाएं, उसके लिए strategic management help करता है. Environment में जो भी चल रहा है, ups and downs, changes, vagaries of the environment आप उनसे deal कर पाएं और अपने future को better तरीके से shape कर पाएं. Third, strategic management एक framework provide करता है for taking all the major decisions like कौन से business करने हैं, कौन से products launch करने हैं, किन markets को आपको cater करना है, investment कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, किस तरह का structure होगा. So clearly आपको better guidance provide करता है on crucial areas. Then strategic management is concerned with ensuring a good future for the firm. वो company को prepare करता है for good future because company through strategic management अपने लिए opportunities identify कर पाती है. Then strategic management also serves as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. Strategic management आपको mistakes और pitfalls, threats और challenges से deal करने के लिए भी help करता है by serving as a corporate defense mechanism. ये आपका एक defense mechanism है जिसके through आप अपने को protect कर सकते हैं from mistakes and pitfalls. Pitfalls मतलब some challenges, some threats. And finally, it helps organizations to evolve certain core competencies and competitive advantages जिसके through companies survive और grow कर पाती हैं. Now, no doubt strategic management is very important for the companies. Strategic management tools को use करके companies successful हो सकती हैं, competitive advantage gain कर सकती हैं, proactive बनती हैं, core competencies, competitive advantages gain करती हैं, products में innovations लाती हैं, बहुत सारे benefits हैं. But हमेशा strategic management companies को success दे, that is not guaranteed. Success is not always guaranteed through strategic management. Why? Because there are some limitations that strategic management also has. First point, that environment highly complex है, highly turbulent है. Complex मतलब difficult. It is very difficult to understand the environment कि environment में चल क्या रहा है क्योंकि environment में इतने सारे factors हैं, इतनी सारी forces हैं, हर एक force को हर एक फैक्टर को समझना और उसका हम पर क्या इंपैक्ट कर रहा है, ये सब कुछ एनालाइज करना इतना आसान नहीं है. बिकॉज एनवायरमेंट टर्बुलेंट है. टर्बुलेंट मतलब जिसमें क्विकली चेंजेस हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो कभी थ्रेट्स आती हैं, कभी एनवायरमेंट आपके फेवर में होगा तो कभी वो आपके अगेंस्ट होगा. सो ऐसे डायनामिक टर्बुलेंट एनवायरमेंट को हमेशा एक्जैक्टली अंडरस्टैंड करना, फोरकास्ट करना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट. एक्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि फ्यूचर में क्या होगा. कंपनी सिर्फ प्रोएक्टिव बनकर चल सकती है, राइट. दे कैन एनालाइज दैट क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 100% वैसा होगा वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दैट. सो जो हमारे एस्टिमेट्स हैं, जो हमारे फोरकास्ट्स हैं फ्यूचर को लेके, दे कैन गो रॉन्ग एंड दे कैन जियोपडाइज ऑल आवर प्लान्स. जो हम फोरकास्ट करके चल रहे हैं स्पॉइल हो जाएंगे. वी विल पुट ऑल आवर प्लान्स इनटू अ वेरी रिस्की सिचुएशन. सो अगर कंपनीज बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे ब्लाइंडली रिलाई करती हैं कि भाई जो हमने स्ट्रैटेजी बनाई है वो कुछ भी हो जाए एनवायरमेंट में, वी कैन डील विद इट, हम संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है. बिजनेस स्ट्रैटेजी पे ब्लाइंडली रिलाई करना आपके लिए डिजास्टर्स प्रूफ हो सकता है. इट कैन गो रॉन्ग बिकॉज एनवायरमेंट टर्बुलेंट है. यहाँ पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो आपने कभी सोचा नहीं था. सो ऐसे डायनामिक टर्बुलेंट कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट को ओवरकम करना through strategic management is not always possible. Strategy cannot overcome a turbulent environment. That is one limitation. Another limitation, strategic management का ये जो पूरा प्रोसेस है, इतनी सारी एक्टिविटीज जो हम उसमें करते हैं, environment को एनालाइज करना है, विजन मिशन बनाना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, अपने लिए एक सूटेबल स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है, फिर उस स्ट्रैटेजी को कम्युनिकेट करना है तो योर लोअर लेवल्स ताकि वो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर पाएं. इस सब में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. लॉट ऑफ टाइम स्पेंट इन फॉर्मुलेटिंग, इन प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द स्ट्रैटेजीज, इन इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजीज. उससे क्या होता है, जो कंपनी के डेली ऑपरेशंस होते हैं वो इंपीड होते हैं, उनमें ऑब्स्टिकल्स आती हैं, आपका रूटीन बिजनेस, डे टू डे बिजनेस नेगेटिवली इंपैक्ट होता है. सो सिर्फ प्लान्स बना लेने से काम नहीं चलता है, हमें उन प्लान्स को एक्शंस में भी कन्वर्ट करना होता है, एग्जीक्यूट भी करना है, राइट. दैट इज वेयर द सक्सेस ऑफ द कंपनी विल लाई. लेकिन एग्जीक्यूट करने में, एट द सेम टाइम प्लानिंग करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के साथ साथ ये एक कॉस्टली प्रोसेस भी है. अब अगर आपको रिसर्च करनी है, एनवायरमेंट को एनालाइज करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है, उसके लिए आपको काफी सारा खर्चा करना पड़ेगा. लॉट ऑफ एक्सपेंसेस कंपनीज को इनकर करने पड़ते हैं. अच्छी स्ट्रैटेजीज, इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर्स की जरूरत पड़ती है. उन्हें अपॉइंट करना, उन्हें रिक्रूट करना, अगेन वहां पे आपके एक्सपेंसेस लगते हैं. अच्छी स्ट्रैटेजीज डिवाइस करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, एनवायरमेंट को एनालाइज कर रहे हो. एनवायरमेंट को जब आप एनालाइज कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो वहां पर भी आपके एक्सपेंसेस इनकर होते हैं. फिर जब आपको स्ट्रैटेजीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है, तभी आपके रिसोर्सेज कमिट होंगे, आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी. अगेन वहां पे हमारा एक्सपेंडिचर होगा. सो जो बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास, उनके लिए ये जो पूरा प्रोसेस है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वो काफी कॉस्टली प्रूफ हो सकता है. एंड फाइनली द लास्ट लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रैटेजी. सो जिस तरह का डायनामिक एनवायरमेंट है, ऐसे एनवायरमेंट में हर कंपनी अपने लिए अपनी तरफ से एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाती है. एवरी कंपनी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल ट्राई टू मूव स्ट्रैटेजिकली. आपने सोचा था कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको बस प्राइस कम करने की जरूरत है. प्राइस कम करोगे, कम प्राइस पर दोगे तो कस्टमर्स आपके होंगे. लेकिन कंपटीटर एक बेटर स्ट्रैटेजी लेकर आया. कंपटीटर ने कहा कि भाई अब लोगों को प्रोडक्ट में नया कुछ चाहिए. कंपटीटर ने अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव किया, उसमें नए फीचर्स ऐड करे, इंप्रूवमेंट्स करी, कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आया. तो कस्टमर्स की डिमांड इस प्रोडक्ट के लिए, कंपटीटर के प्रोडक्ट के लिए इंक्रीज होगी. तो आपने जो सोचा था कि मेरी स्ट्रैटेजी सही होगी, उसके अगेंस्ट कंपटीटर्स के क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, रिएक्शंस होंगे, वो हमें नहीं पता, वो हम क्लियरली एस्टिमेट नहीं कर सकते. बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर राइवल की क्या स्ट्रैटेजी होगी. ये मेजर करना, ये गॉज करना इज नॉट इजी. इट इज वेरी चैलेंजिंग. आई होप द लिमिटेशंस आर क्लियर. नाउ लेट्स सी कि आपको लिमिटेशन से किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. एक स्टेटमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट ओवरकम ऑल द चैलेंजेस ऑलवेज इन कॉन्टेक्स्ट
next to this explain the limitations, या आपको केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है. So let's take a look at one case scenario related to limitations of strategic management. Ramesh Sharma has 15 stores selling consumer durables in Delhi region. 4 of these stores were opened in the last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerators, televisions, washing machines, ACs and like till 4 years back. With the shift to the purchase to online stores, the sales of his stores came down to about 70% in the last 4 years. Analyze the position of Ramesh Sharma in light of limitations of strategic management. So यहाँ पर जो हमें केस दिया है, क्या बोला गया है कि रमेश शर्मा हैं जिनके 15 स्टोर्स रन हो रहे थे इन द दिल्ली रीजन और वो स्ट्रेटेजिकली मैनेज करते थे अपने पूरे बिजनेस को, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो यूज कर रहे हैं और उसके कारण उनको काफी अच्छी सेल्स भी हो रही थी, लेकिन 4 साल पहले तक. बट उसके बाद क्या हुआ कि सडनली उनकी सेल्स 70% से नीचे आ गई. तो हुआ ये कि ऑनलाइन स्टोर्स आ गए, तो मतलब एक नया कंपटीशन आ गया, एनवायरमेंट में कुछ ऐसा हो गया जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो इसके कारण उनकी सेल्स कम हो गई. तो अब हमें बताना है लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. हमेशा पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, अब क्योंकि यहाँ पर ये केस है तो केस स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन होगी. हम थोड़ा सा केस के बारे में बता देंगे कि क्या हुआ रमेश शर्मा के साथ. सो रमेश शर्मा इज फेसिंग डिक्लाइनिंग सेल्स ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज स्केल शिफ्ट ऑफ कस्टमर्स टू ऑनलाइन स्टोर्स. Although he is using the tools of strategic management, but he cannot counter all hindrances and always achieve success because there are some limitations attached to strategic management, जो कि क्या है, environment highly complex और turbulent है. अब आप उसको रिलेट करो, turbulent क्यों है, डायनामिक क्यों है, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जो रमेश शर्मा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. एंट्री ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स हो गई, न्यू कंपटीशन क्रिएट हो गया, जिसके थ्रू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बेचने का तरीका कंप्लीटली बदल गया. ऑनलाइन आप उन्हें बेचने लग गए, तो ऑनलाइन स्टोर्स का साइज भी बड़ा होगा, कस्टमर बेस भी बड़ा होगा, राइट. तो इन्होंने काफी स्टिफ कंपटीशन दे दिया ट्रेडिशनल फिजिकल स्टोर्स को. सो दैट इज हाउ हमने इसको केस के साथ रिलेट कर दिया. सेकंड पॉइंट इज इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट हाउ थिंग्स विल शेप इन फ्यूचर. वैसे ये फर्स्ट पॉइंट में आ जाता है, लेकिन हमने यहाँ से भी एक और पॉइंट निकाल दिया, हाउ थिंग्स विल शेप अप इन फ्यूचर. इसे प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है. रमेश शर्मा ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाए कि फ्यूचर में ऑनलाइन स्टोर्स जैसा भी कुछ आ सकता है और वो हमारी सेल्स को इंपैक्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो इतना टाइम लगता है स्ट्रेटजीज बनाने में, कम्युनिकेट करने में, एनवायरमेंट को एनालाइज करने में, दैट जब तक कि ये पूरा प्रोसेस फुलफिल होता है तब तक एनवायरमेंट में कोई चेंज हो गया होता है. सो इन दिस केस वी कैन से दैट शायद रमेश शर्मा के पास सफिशिएंट टाइम नहीं था एनवायरमेंट को एनालाइज करने के लिए, बिकॉज ऑफ व्हिच वो ये असेस नहीं कर पाए दैट ऑनलाइन स्टोर्स भी आ सकते हैं. बट दैट डज नॉट मीन दैट हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं करनी है, काफी चैलेंजिंग है, राइट. तो थोड़े और एफर्ट्स रमेश शर्मा को यहाँ पर डालने पड़ेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉस्टली प्रोसेस है. हो सकता है रमेश शर्मा बिकॉज ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस वो एक्सपर्ट प्लानर्स को हायर नहीं कर पाए जो उनको इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करते. सो अब रमेश शर्मा को कंसीडर करना चाहिए एक्सपर्ट्स को एंगेज करने में, बिकॉज वो ये पता लगा सकते हैं कि एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स की किस तरह की प्रेफरेंसेस हैं, किस तरह के चेंजेस वो प्रोडक्ट में चाह रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज वो चाहते हैं, ताकि आप कंज्यूमर्स कस्टमर्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करो, अट्यून करो, मॉडिफाई करो, उनके लिए कुछ कस्टमाइज करो, तभी आप ऑनलाइन स्टोर से आगे निकल पाओगे. अदरवाइज उनके साथ मैच करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. एंड देन द लास्ट लिमिटेशन दैट बिकॉज वी नो दैट रमेश शर्मा फिजिकल स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं, अब उनके जो स्टोर्स हैं ऑफ कोर्स दे विल बी स्मॉलर दैन द ऑनलाइन स्टोर्स, स्मॉलर इन टर्म्स ऑफ द रीच, मार्केट रीच कम है, और रमेश शर्मा के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा विजुअलाइज करना, असेस करना कि जो आपके कंपटीटर्स हैं ऑनलाइन स्टोर्स हैं उनकी क्या-क्या स्ट्रेटजीज होंगी, उनकी क्या मूव होगी. अगर रमेश शर्मा कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, प्राइस कम करते हैं, तो हो सकता है ऑनलाइन स्टोर्स में प्राइस और भी कम हो जाए. दे कैन ऑपरेट एट लेस कॉस्ट दैन द फिजिकल स्टोर्स रन बाय रमेश शर्मा. सो दैट्स हाउ सारे पॉइंट्स वही रहेंगे की पॉइंट्स, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन आपको केस के साथ रिलेट करनी है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. सो दो तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं, एक होती है प्रोएक्टिव, दूसरी होती है रिएक्टिव. तो हमसे ये पूछा जाता है कि क्या स्ट्रेटजी जो कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेटजी होती है वो कुछ हद तक प्रोएक्टिव होती है और कुछ हद तक रिएक्टिव होती है. क्या एक्चुअल स्ट्रेटजी दोनों का ब्लेंड होती है, मतलब कंपनी को कुछ हद तक प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा और कुछ हद तक रिएक्टिव भी बनना पड़ेगा. ये क्वेश्चन हमें आ जाता है केस स्टडी की फॉर्म में भी आ जाता है, डायरेक्टली भी आ जाता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है, रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है, और फिर हम बताते हैं कि एनवायरमेंट से डील करने के लिए, जो अनसर्टेन एनवायरमेंट है इससे डील करने के लिए हमें दोनों ही स्ट्रेटजीज की जरूरत पड़ती है. फिर हम वो डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं. सो आपको इसी सीक्वेंस में अपने आंसर अटेम्प्ट करना होता है दैट प्रोएक्टिव और रिएक्टिव स्ट्रेटजी होती क्या है, दोनों की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर आप वो लिखोगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है. नाउ अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो, यहाँ पे दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये थोड़ा सा हैरान है, परेशान है, क्योंकि ये रिएक्टिव है नेचर. ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन तब ढूंढता है जब प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है. ऑन द अदर हैंड दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज वेरी हैप्पी, राइट, क्योंकि ये कौन है, ये है प्रोएक्टिव इन नेचर. प्रोएक्टिव मतलब ये प्रॉब्लम्स का वेट नहीं करते कि प्रॉब्लम आएगी तो देखा जाएगा तब कुछ करेंगे. ये पहले से ही प्लानिंग करके चलते हैं कि प्रॉब्लम्स को आने से हम कैसे रोक सकते हैं. हम पहले से ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं और ये बोलते हैं कि जब एग्जाम आएगा ना यार उस टाइम मैं पढ़ना शुरू करूंगा. यही सिचुएशन बिजनेस वर्ल्ड में कंपनीज के साथ भी होती है. कुछ कंपनीज होती हैं रिएक्टिव और कुछ कंपनीज होती हैं प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव कंपनीज क्या करती हैं, प्लानिंग करके चलती हैं, प्री डिटर्मिन्ड मैनर में चलती हैं, पहले से ही सोच समझकर वो असेस करके चलती हैं, एंटिसिपेट करके चलती हैं कि हमारे लिए एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या थ्रेट्स, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. एट द सेम टाइम क्या कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. पहले से ही आप एंटिसिपेट कर रहे हो और खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, डेलिबरेटली यहाँ पर आप काम कर रहे हो, सोच समझकर लॉजिकली चल रहे हो, सो दैट अगर कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप अपने राइवल से पहले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें, और अगर कोई चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, तो आप प्रिपेयर्ड हो. आपने अभी से अपनी स्ट्रेंथ्स डेवलप करी हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने में आप ध्यान दे रहे हो, ताकि अगर कोई चैलेंज आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हो. सो प्रोएक्टिव कंपनीज अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करने के लिए, एबिलिटी टू कम्पीट विद योर कॉम्पिटिटर्स, इसे इंप्रूव करने के लिए आप पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं. ये हुआ प्रोएक्टिवनेस. सो अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एनवायरमेंट. ऑन द अदर हैंड जो हमारी रिएक्टिव कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, ये एंटिसिपेट करके नहीं चलती, ये सिर्फ रिएक्ट करती हैं, अडैप्टिव रिएक्शंस देती हैं. जब एनवायरमेंट में कुछ हो जाता है तब ये सिंपली रिएक्ट करेंगी. अब एनवायरमेंट में प्रॉब्लम आ गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, अब हमें नई टेक्नोलॉजी पर जाना पड़ेगा. लेकिन जब तक हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे तब तक हमारे कंपटीटर्स टेक्नोलॉजी को यूज करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट ऑलरेडी कर चुके होंगे. सो जो हमारी रिएक्टिव कंपनीज हैं वो तब रिएक्ट करती हैं, तब अडैप्ट करती हैं जब एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर या टॉपिक पर कि स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव होती है या पार्टली रिएक्टिव होती है या दोनों का ब्लेंड होती है. सो स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. यस, दिस इज करेक्ट. कंपनी इज अ ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब दोनों को मिलाकर, दोनों को टुगेदर स्टिच करके प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, रिएक्टिव स्ट्रेटजी इकट्ठा करके ही कंपनी की एक अच्छी स्ट्रेटजी बनती है. प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी क्या होती है, प्लान्ड एक्शंस जो कंपनी ले रही है अपनी मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए. ऑन द अदर हैंड रिएक्टिव स्ट्रेटजी क्या हुई, अडैप्टिव रिएक्शंस दे रहे हो आप टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस. जब एनवायरमेंट में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, अनएंटिसिपेटेड मतलब जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया था, असेस नहीं किया था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ हो जाता है. इन दैट केस कंपनीज क्या करेंगी, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची है बट टू अडैप्ट. अब उन्हें अडैप्ट करना पड़ेगा, अब वो एक स्ट्रेटजी लेकर आएंगी. सो अनसर्टेन एनवायरमेंट से डील करने के लिए दोनों ही स्ट्रेटजीज का यूज किया जाता है.
कैसे, व्हाई एंड हाउ। इन प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज कंपनीज पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोस को एनालाइज करती हैं कि क्या क्या हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली वो एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क क्रिएट करती हैं। मतलब अपने लिए पहले से ही स्ट्रैटेजीज बना रही हैं, सोच रही हैं, प्रॉपर्ली प्लान कर रही हैं कि अगर न्यू कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो हम कैसे डील करेंगे, अगर कस्टमर्स की नीड्स एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं तो हमें क्या करना है। आप पहले से ही प्लानिंग करके चल रहे हैं, आप पहले से ही अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, आप पहले से ही एक पायनियर बन रहे हैं। पायनियर मतलब आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, आप नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो, प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हो पहले से ही, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हो कि चेंजेस तो होंगे, एनवायरमेंट डायनामिक है। सो प्री डिटरमिन्ड मैनर में आप पहले से ही स्ट्रैटेजीज बना के चल रहे हो। दिस पार्ट इज कॉल्ड डेलिब्रेट एंड प्लान्ड प्रोडक्ट ऑफ एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। मतलब प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉपर एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इंटेलिजेंटली सोच समझकर प्रोएक्टिवली चल रहे हो टू डील विद द एनवायरमेंट। बट यहाँ पर अब रोल आने वाला है रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज का। तो अगर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है तो कंपनीज को रिएक्टिव स्ट्रैटेजीज की जरूरत क्यों पड़ रही है? द रीजन इज दैट इन रियलिटी नो कंपनी कैन फोरकास्ट द एनवायरमेंट एक्जैक्टली। आप एक सिर्फ फोरकास्ट करके चल सकते हैं, लेकिन हर एक चीज पहले से ही प्लान करके नहीं चल सकते। इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एंटिसिपेट, टू एक्सपेक्ट कि राइवल की मूव क्या होंगी, कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होगा, टेक्नोलॉजीज किस तरह से इवॉल्व होंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, हर चीज तो हम फोरकास्ट करके नहीं चल सकते। और अगर हम कुछ मानकर चल रहे हैं, अगर हमने कुछ असेस किया भी है, तब भी जरूरी नहीं है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है वैसा ही होगा। और जब ऐसा हो जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब क्या करना पड़ेगा? तब तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज को उन चेंजेस के हिसाब से ट्यून करना पड़ेगा, मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इन दिस केस हमें रिएक्टिव स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी, व्हिच इज ट्रिगर्ड बाय द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। वो स्ट्रैटेजी जो तब कंपनी लेकर आती हैं जब चेंज हो जाता है, ऐसा चेंज जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू रिएक्ट। अब आपको कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे, वेज एंड मींस टू कोप विद द नेगेटिव फैक्टर्स, या अगर कोई अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो गई है तो अब आप उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करेंगे। सो दिस मींस दैट कंपनी की एक्चुअल स्ट्रैटेजी इट इज अ ब्लेंड ऑफ बोथ proactive and reactive strategy, proactive actions and adaptive reactions. Clear everyone? Please do focus on the key points here, the points that have been highlighted in bold. ये जो keywords हैं अपनी explanation में आपको जरूर लिखने हैं. Now let's take a look at some questions related to proactive and reactive strategies. What kind of questions can you get? Strategy is partly proactive and partly reactive. Do you agree? Give reasons for your answer. और इसी question को एक दूसरी तरह से आपसे पूछा गया है. A business organization can not always plan all their strategies in advance and often need to blend planned strategies with reactive strategies. Do you agree? Give reasons. So in both the questions एक ही चीज पूछी गई है कि क्या strategy blend होता है of proactive and reactive strategies. If yes, we have to give reasons. If no, then also we have to justify our answer. So हम ये already समझ चुके हैं that company की जो actual strategy होती है वो partly proactive होती है, partly reactive होती है. मतलब it is a blend of proactive and reactive actions. So, in proactive strategy, organizations will analyze the possible environmental scenarios and create a strategic framework after proper planning and set procedures and work on those strategies in a predetermined manner. So, हमने यहाँ पे बता दिया कि proactive strategy में कंपनी पहले से ही predetermined manner में प्री प्लानिंग करके चलती है, environment को एनालाइज करके चलती है कि फ्यूचर में environment में क्या क्या हो सकता है, ताकि अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर हो जाए, हम अपने लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप कर ले, फेस द फ्यूचर। अब फिर हमने पढ़ा था बट इन रियलिटी नो कंपनी कैन फोरकास्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स एक्जैक्टली फोरकास्ट करना कि क्या होगा फ्यूचर में एनवायरमेंट में, हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये एक्जैक्टली फोरकास्ट करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू एंटिसिपेट मूव्स ऑफ राइवल फर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एंड सो ऑन। हमेशा ये फोरकास्ट कर पाना एक्जैक्टली कि राइवल्स की क्या मूव होगी, राइवल की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कंज्यूमर्स किस तरह से बिहेव करेंगे, फ्यूचर में किस तरह की टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो सकती हैं, तो हम एक्जैक्टली से हमेशा फोरकास्ट नहीं कर सकते, एंटिसिपेट नहीं कर सकते। सो जब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है एक्जैक्टली हर चीज को फोरकास्ट करना, एंटिसिपेट करना, सो इन दैट केस जब वो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, फ्रेश डेवलपमेंट्स हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स आ जाएंगे, इन दैट केस स्ट्रैटेजीज नीड टू बी मॉडिफाइड इन द लाइट ऑफ पॉसिबल एनवायरमेंटल चेंजेस। फिर हमें जो चेंजेस हुए हैं एज पर दैट अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब अब हमें प्रोएक्टिव से रिएक्टिव बनना पड़ेगा। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज ट्रिगर्ड बाय चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड प्रोवाइड्स वेज एंड मींस टू कोप विद नेगेटिव फैक्टर्स और टेक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। सो क्योंकि हम हर चीज एक्जैक्टली फोरकास्ट नहीं कर पाए और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, एनवायरमेंट में चेंज हो गया, बिकॉज ऑफ दैट चेंज रिएक्टिव स्ट्रैटेजी विल बी ट्रिगर्ड। मतलब अब हमें रिएक्शंस देने पड़ेंगे क्योंकि अडैप्ट करना है। अब हमें रिएक्टिव स्ट्रैटेजी मतलब अडैप्टिव रिएक्शंस देना। अडैप्ट करने के लिए अब हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब जो नेगेटिव सिचुएशन आई है, नेगेटिव फैक्टर्स, कोई थ्रेट्स, कोई चैलेंजेस आए हैं, तो उससे डील करने के लिए हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। या अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है इन द एनवायरमेंट तो अब हमें वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी अगर हमें सर्वाइव करना है। सो दैट इज व्हाई दे सेड दैट एक्चुअल स्ट्रैटेजी इज अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एक्शंस और स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। सो आई होप दैट वन इज क्लियर। अब एक और केस स्टडी देखते हैं रिलेटेड टू प्रोएक्टिव रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। कमल स्वीट कॉर्नर, अ वेरी पॉपुलर स्वीट शॉप इन रांची, was facing tough competition from branded stores of packaged sweets and imported goods. Owners realized that the business reduced by 50% in the last 6 months and this created a stressful business environment for the firm. क्या हुआ? कमल स्वीट कॉर्नर उन्होंने टफ कंपटीशन फेस किया फ्रॉम सम स्टोर्स जो कि पैकेज स्वीट्स और इंपोर्टेड गुड्स बेच रहे थे। फिर उन्होंने क्या रियलाइज किया कमल स्वीट कॉर्नर ने, दैट इस कंपटीशन की वजह से जो उनकी सेल्स थी वो 50% से कम हो गई। दे कंसल्टेड अ बिजनेस कंसल्टेंट टू हेल्प देम डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू फाइट कंपटीशन एंड सस्टेन देयर century old family business. Business consultant advised them to innovate a new snack for the public and market it as a traditional snack of the region. The owners liked the idea and they developed a new snack called dahi samosa, which very quickly became popular amongst the public. It helped regain the lost business of Kamal Sweet Corner. जब उन्होंने रियलाइज किया कि 50% से उनकी सेल्स कम हो गई हैं, तब उन्होंने कंसल्टेंट को मीट किया और कंसल्टेंट ने उन्हें एडवाइस किया कि आप कुछ इनोवेशन करो, आप एक नया स्नैक लेकर आओ और उसी तरह से मार्केट करो, ये बोल के कि ये ट्रेडिशनल स्नैक है। और ओनर्स को ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने एक नया स्नैक इनोवेट किया, दही समोसा। समोसा तो पुराना है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, लेकिन उसको उन्होंने इनोवेट कर दिया जो लोगों को काफी पसंद आया और उनका जो लॉस्ट बिजनेस था वो अब काफी बेटर हो गया। वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाज यूज्ड बाय द बिजनेस कंसल्टेंट टू हेल्प द ओनर्स ऑफ कमल स्वीट कॉर्नर। व्हिच वन कुड इट बी? बिजनेस कंसल्टेंट ने कमल स्वीट कॉर्नर को जो एडवाइस दिया वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंस पर बेस्ड था। हमें बताना है वो कौन सा पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, साथ में ये भी बताना है कि स्ट्रैटेजी जो फॉलो करी कमल स्वीट कॉर्नर ने वो रिएक्टिव थी या प्रोएक्टिव थी और कौन सी बेटर होती है इन जनरल पार्लेंस, इन जनरल प्रैक्टिस कौन सी बेटर होती है। सो यहाँ पर कंसल्टेंट ने बेसिकली कमल स्वीट कॉर्नर को ये एडवाइस किया कि आप अपनी कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज डेवलप करिए, कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करिए जिसके थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर पाओ। द स्ट्रैटेजी यूज्ड हियर वाज ऑफ डेवलपिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के थ्रू आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करो, व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, दैट इट हेल्प्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस टू ओवरकम कॉम्पिटिशन। सो कंसल्टेंट ने कहा कि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिशन को बीट करना पड़ेगा। कैसे? प्रोडक्ट के थ्रू कुछ यूनिक डेवलप करो, जो कमल स्वीट कॉर्नर ने किया। लेकिन कब किया? कब वो कंसल्टेंट के पास गए? जब उनकी सेल्स 50% से ऑलरेडी कम हो चुकी थी। सो कौन सी स्ट्रैटेजी उन्होंने फॉलो करी? रिएक्टिव और प्रोएक्टिव? रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। व्हेन द ओनर सॉ द बिजनेस फॉल टू 50% देन दे स्टार्टेड सीकिंग अ स्ट्रैटेजिक एडवाइस। फिर उन्होंने स्ट्रैटेजिक एडवाइस लिया कंसल्टेंट से। दे डिड नॉट प्लान प्रोएक्टिवली एज टू व्हेन द न्यू शॉप्स वर ऑलरेडी ओपनिंग, दे रिएक्टेड ओनली व्हेन द बिजनेस स्टार्टेड टू लूज आउट। नाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज मोर बेनिफिशियल इन जनरल पार्लेंस? सो जनरली इट इज बेनिफिशियल टू डेवलप स्ट्रैटेजीज प्रोएक्टिवली सो दैट अगर आपको कोई चैलेंज आता भी है, जैसे यहाँ पर सेल्स डिप हो गई थी, सो वो इतनी कम हो कि मैनेजेबल हो आपके लिए, ज्यादा लॉस ना हो। नाउ वी आर गोइंग
going to start with a new topic, that is strategic intent. हर कंपनी अपनी शुरुआत कैसे करती है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट को फॉर्मुलेट करके. सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, वाइड टर्म है, जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड है. व्हाट ऑल थिंग्स और व्हाट ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन स्ट्रैटेजिक इंटेंट. तो यहाँ पर कंपनीज अपने लिए विजन बनाती हैं, कंपनीज अपने लिए मिशन बनाती हैं, कंपनीज गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करती हैं. जो भी कंपनी की विजन है, मिशन है, इसे अचीव करने के लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं. एंड फाइनली विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन लेते हुए वैल्यूज को कंसीडर किया जाता है. कंपनीज की वैल्यूज, कंपनीज का वैल्यू सिस्टम, उसे ध्यान में रखकर कंपनीज की विजन बनाई जाएगी, कंपनीज की मिशन बनाई जाएगी, कंपनीज के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे. सो बेसिकली ये जो वैल्यू सिस्टम है ना कंपनी का, उस पर पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक इंटेंट डिपेंड करता है. वैल्यू सिस्टम ड्राइव करता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट को. मतलब स्ट्रैटेजिक इंटेंट जब कंपनीज डिफाइन कर रही हैं तो कहीं ना कहीं वो कंपनी के फ्यूचर की भी बात कर रही हैं. फ्यूचर मतलब विजन, फ्यूचर में हमें कहां जाना है, वेयर डज द कंपनी वांट टू लैंड, उसकी बात हो रही है. मिशन की भी बात हो रही है, मिशन मतलब कंपनी का पर्पस, रीजन क्या है एग्जिस्ट करने का, अभी कंपनी क्या बिजनेस कर रही है. विजन और मिशन को कन्वर्ट किया जाता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में. अब ये दोनों अचीव करने के लिए कंपनी अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करेगी, मंथली ऑब्जेक्टिव्स, वीकली ऑब्जेक्टिव्स, डेली ऑब्जेक्टिव सेट करेगी. ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते जाओगे तो आपका जो बड़ा गोल है वो अचीव होता जाएगा. गोल्स अचीव हो रहे हैं तो मिशन अचीव होगी, मिशन अचीव हो रहा है तो आप अपनी फ्यूचर डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट तक भी पहुंचेंगे. और ये सब कुछ किया जा रहा है वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रखकर. कोई भी डिसीजन एक्शन लेने से पहले कंपनीज वैल्यूज को ध्यान में रख रही है. तो वैल्यूज बेसिकली ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसे ध्यान में रखकर कंपनी का हर डिसीजन, हर एक्शन, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सब सेट किया जाता है. लेट्स गिव अ रीडिंग टू ऑल ऑफ दीस इंडिविजुअली नाउ. सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक प्री डिफाइंड फ्यूचर स्टेट है. पहले से ही कंपनीज ये सोचकर चल रही हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, अपनी कंपनी को किस लेवल तक लेकर जाना है. सो मतलब यहाँ पर हमने विजन की बात भी कर ली. देन स्ट्रैटेजिक इंटेंट इज आल्सो डिफाइंड एज अ रीजन फॉर एग्जिस्टेंस. कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, क्या एक्चुअली आप अचीव करना चाह रहे हो, आपके ब्रॉड गोल्स क्या हैं और गोल्स को आप कैसे अचीव करोगे. व्हाट इज योर रीजन, द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसे हम मिशन भी कहते हैं. स्ट्रैटेजिक इंटेंट को फिलोसॉफिकल बेस भी कहा जाता है. फिलोसॉफिकल बेस मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है. रिमेंबर वैल्यू सिस्टम को इंक्लूड करता है, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो आपको क्या करना है, कैसे करना है. तो ये एक फिलोसॉफिकल बेस भी है. ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो पर्सपेक्टिव देती है ऑफ द मींस ऑफ रीचिंग द विजन. जो आपने विजन बनाई है, जो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म में जाकर कभी अचीव करोगे, तो वहां तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए ये आपको एक पर्सपेक्टिव देती है. जो भी हमने अपने लिए लॉन्ग टर्म मार्केट पोजीशन सोची है कि फ्यूचर में हमारी ये पोजीशन होगी, उस लॉन्ग टर्म पोजीशन को इंडिकेट करता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट. सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट दो फॉर्म्स में हो सकता है. एक विजन एंड मिशन की फॉर्म में. विजन एंड मिशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? कॉर्पोरेट लेवल. कॉर्पोरेट लेवल मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट, जहां पर आपके सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स वो सब बैठते हैं. तो वो लोग कॉर्पोरेट लेवल विजन और मिशन बनाता है. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बिजनेस डेफिनेशन एंड बिजनेस मॉडल, ये सब कुछ किया जाता है बाय बिजनेस लेवल मैनेजर्स. सो हम क्या कह सकते हैं कि जब कंपनी अपने लिए स्ट्रैटेजिक इंटेंट फॉर्मुलेट कर रही है तो ब्रॉड टर्म्स में उसे लिखा जाता है, क्योंकि उसमें इतना कुछ हम कवर कर रहे हैं. जब हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट को प्रिसाइज टर्म्स में लिख रहे हैं, स्पेसिफिक टर्म्स में, तो मतलब हम बात कर रहे हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की, कि एग्जैक्टली हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं बाय द एंड ऑफ 1 मंथ, बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयरली, राइट. सो वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं ताकि हम अपनी विजन मिशन को अचीव करें. पूरा स्ट्रैटेजिक इंटेंट जो हमारा है, इंटेंशन जो है, उसे अचीव कर पाए. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. अब हम आते हैं उसके एलिमेंट्स पे, जिसका ब्रॉड ओवरव्यू मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं. सो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट. सबसे पहले विजन. विजन क्या डिफाइन करता है? लॉन्ग टर्म गोल्स. फ्यूचर में हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना है. जैसे आप सबका विजन होगा दैट लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में देखते हैं एज अ सीए. सो विजन इज द ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजीशन. ये ऑर्गेनाइजेशन के एस्पिरेशंस को डिपिक्ट करता है. एस्पिरेशंस मतलब आप क्या एस्पायर कर रहे हो, आपकी क्या डिजायर है फ्यूचर को लेके, कि हम अपनी कंपनी को किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं. ये इंडिकेट करता है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बी इन द फ्यूचर. फ्यूचर में आप क्या बनना चाहते हो, फ्यूचर में आप कहां लैंड करना चाहते हो. And every subsystem in the organization, every department, every division, every business, every individual has to follow the vision of the company. So everyone will have a common vision. क्योंकि विजन सभी को मोटिवेट करती है, उन्हें एक सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. विजन से हमें फ्यूचर की क्लैरिटी मिलती है, एक डायरेक्शन समझ में आती है कि अच्छा हमें किस लेवल तक जाना है, हमें क्या करना है इन द फ्यूचर. अब जैसे हम टेस्ला की बात करें, तो टेस्ला कंपनी का विजन है दैट उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में एक बेस्ट कंपनी बनना है. दैट इज देयर ओवरऑल विजन. देन वी हैव मिशन. अब मिशन क्या होता है? मिशन की जब हम बात करें तो आप अपने प्रेजेंट को ध्यान में रखो. विजन तक पहुंचने के लिए अभी कुछ करना पड़ेगा. सो मिशन डिफाइन करता है कंपनी का प्रेजेंट पर्पस, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी. एक कंपनी एग्जिस्ट क्यों कर रही है, सोसाइटी में वो किस तरह का रोल प्ले कर रही है, मतलब आप सोसाइटी की कस्टमर्स की कौन सी नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, उनके लिए कौन से प्रोडक्ट बना रहे हो, कौन सी सर्विसेज उनके लिए लेकर आए हो. सो कंपनी के पूरे बिजनेस के बारे में मिशन से पता लगता है. ये डिस्क्राइब करता है कंपनी की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज को, कि अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है. इससे पता लगता है कि कंपनी कौन सी मार्केट को सर्व कर रही है. मार्केट का मतलब हो सकता है ज्योग्राफिकल मार्केट, कि आप क्या सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, इंडिया में अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो किन किन रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, या आप ग्लोबली ऑपरेट करते हैं. ठीक है. एट द सेम टाइम कस्टमर टारगेट मार्केट हो सकती है, कि क्या आप सभी कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं ब्रॉड मार्केट के लिए, या आप एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओनली मेल्स, ओनली फीमेल्स, सिर्फ बच्चों के लिए, लो इनकम ग्रुप के लिए, हाई इनकम ग्रुप के लिए. तो आप इन मार्केट्स को सर्व कर रहे हो वो समझ में आता है, और आपका एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है. जो भी कंपनी के पोटेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें मिशन स्टेटमेंट पढ़ के ये समझ में आता है कि कंपनी का पर्पस क्या है, क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट करना हमारे लिए सही होगा, क्या इस कंपनी का पर्पस अच्छा है, क्या कंपनी इस पर्पस को अचीव कर पाएगी. सो स्टेक होल्डर्स ये समझ पाते हैं. स्टेक होल्डर्स मतलब कंपनी से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सबको समझ में आएगा कि भाई इस कंपनी का पर्पस क्या है, ये कंपनी कौन सा बिजनेस कर रही है, व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक, या व्हाट बिजनेस द फर्म इज इन. सो बिजनेस के बारे में डिटेल में पता लगता है, जैसे कि आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, आप कस्टमर्स की कौन सी नीड को फुलफिल कर रहे हो, आपका एग्जैक्ट बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, सर्विसेज क्या है, सोसाइटी में आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, आपकी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज क्या है. मिशन पढ़ के सभी स्टेक होल्डर्स को कंपनी का पर्पस, रीजन फॉर एक्जिस्टेंस, उनका डिटेल बिजनेस समझ में आता है. जैसे ट्विटर की अगर हम बात करें, उनकी मिशन स्टेटमेंट क्या है, टू गिव एवरीवन द पावर टू क्रिएट एंड शेयर आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर्स. तो ये पढ़ के हमें समझ आ रहा है दैट उनका बिजनेस क्या है, आइडियाज शेयरिंग, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग. हमें ये समझ में आ रहा है कि उनकी मार्केट कौन है, एवरीवन. वो किसी स्पेसिफिक मार्केट के लिए ऑपरेट नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ यंगस्टर्स के लिए इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, आइडियाज शेयर कर सकता है. नाउ द थर्ड एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट व्हिच इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स.
गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, जो ये टर्म है ना, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। गोल्स का मतलब डिफरेंट होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है। पर्पस क्या है कि विजन और मिशन को कन्वर्ट करना इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स। अभी तक तो जो हम डिफाइन कर रहे हैं फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, अभी क्या बिजनेस है, ठीक है, वो आपकी विजन और मिशन है, बट उसे अचीव करने के लिए आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने पड़ेंगे कि एक नंबर 1 कंपनी बनने के लिए हमें रेवेन्यूज जनरेट करने पड़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आपका मार्केट रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं कि आपको मार्केट शेयर इंप्रूव करना है, आपके कस्टमर्स रिलेटेड गोल्स हो सकते हैं, द कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज योर गोल, कस्टमर सैटिस्फाइड रहना चाहिए। सो ये कंपनी के मल्टीपल गोल्स हो सकते हैं। जब हम गोल्स की बात करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजायर्ड आउटकम, किस तरह का रिजल्ट कंपनी चाह रही है, कंपनी क्या चाह रही है, आपका क्या डिजायर्ड आउटकम है कि हमारा इंटरमीडिएट पास हो, ये रिजल्ट आप चाह रहे हो, हमारी एफएमएसएम में एग्जेम्पशन हो। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स वो छोटे छोटे टारगेट्स हैं जो आपको गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ, टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स। इन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर एक्चुअली आप अपनी परफॉर्मेंस को असेस कर पाते हो कि हमने कैसे परफॉर्म किया है। तो जो आपका गोल है रेवेन्यू इंक्रीज करना, अभी रेवेन्यूज कब तक इंक्रीज करने हैं, कैसे इंक्रीज करने हैं, ये तो हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। सो ऑब्जेक्टिव्स में हम वो स्पेसिफाई करते हैं कि रेवेन्यूज इंक्रीज करने हैं बाय लेट्स सपोज जनरेटिंग 3 न्यू कस्टमर्स एवरी मंथ, सो दैट बाय द एंड ऑफ 1 ईयर हमारे रेवेन्यूज इंक्रीज हो जाए बाय 5%, 2%, व्हाटएवर। तो यहाँ पर देखो हमने हर चीज स्पेसिफाई कर दी। सो अब हम अपनी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आफ्टर एवरी मंथ चेक करेंगे कि क्या हमने ये 3 कस्टमर्स नए कस्टमर्स जनरेट किए, नहीं किए तो मतलब हमारी परफॉर्मेंस सही से नहीं हो रही है। जो हमारा ब्रॉड गोल है रेवेन्यू इंक्रीज करने का वो शायद ना हो, 1 ईयर में हम 5% रेवेन्यू शायद इंक्रीज ना कर पाए। ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं गोल से, ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब यहाँ पर आपने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है कि लोग मिसअंडरस्टैंड करें, सबको क्लैरिटी होगी क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है। लेकिन जो गोल्स होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं, यहाँ पर आपके पास बहुत स्कोप है, सबके पास स्कोप है इसका डिफरेंट मीनिंग निकालने का, इसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करने का। बट यहाँ पर हमें क्या लिखना है, दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही हेल्प करते हैं विजन और मिशन को अचीव करने के लिए। इन दोनों टर्म्स को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाय कंपनीज इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो कुछ कंपनीज गोल बोल देती हैं, कुछ कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स बोल देती हैं, एज सच इतना ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों का पर्पस एक ही है, अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। जो लोग आपकी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन्हें एक सेंस ऑफ मीनिंग और सेंस ऑफ डायरेक्शन प्रोवाइड करना कि करना क्या है, कब तक करना है, ये हमें गोल्स और ऑब्जेक्टिव से समझ में आता है कि एक्जैक्टली क्या एक्शंस लेने हैं। ये मोटिवेट करता है कंपनीज को रिजल्ट सेंट्रिक बनने के लिए कि भाई फोकस करो ऑन द रिजल्ट, अपने रिजल्ट को दिमाग में रखो, क्या एंड आउटकम हम चाहते हैं, ओके हमें पास होना है, क्लियर करना है, एग्जाम्शन लेना है, ये एंड गोल अपने दिमाग में रखो, राइट। तब आप मोटिवेटेड फील करोगे और उसे अचीव करने के लिए आप सूटेबल एक्शंस भी लोगे। सो ये कंपनीज को मोटिवेट करता है रिजल्ट सेंट्रिक बनने के लिए। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेंचमार्क्स स्टैंडर्ड्स की तरह काम करते हैं जिसके बेसिस पर कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा और इवैल्यूएट किया जाता है। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। गोल एंड रिजल्ट डिजायर्ड आउटकम को डिपेंड करता है, ब्रॉड होता है, ओपन एंडेड होता है, और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप स्पेसिफिक एक्शंस ले पाओगे गोल्स को अचीव करने के लिए। ये क्लोज एंडेड होते हैं, यहाँ पे हर चीज हमने डिटेल में स्पेसिफाई कर दी। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ एलिमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट व्हिच इज वैल्यूज और वैल्यू सिस्टम। आपको अलग से भी इस टॉपिक पर पूछा जा सकता है बिकॉज ये अंडर न्यू स्कीम नया ऐड हुआ है अंडर स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का टॉपिक पहले भी था, लेकिन जो ये फोर्थ एलिमेंट है वैल्यू सिस्टम ये नया ऐड किया है। सो मैंने पहले भी आपको बताया वैल्यूज क्या होती हैं। हम सबकी लाइफ में कुछ वैल्यूज हैं, कुछ डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, राइट, जो हमारे एक्शंस को डिसीजंस को गाइड करते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम बोलते हैं कि भाई हम इन प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सो वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज क्या होती हैं, दे आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल्स। इन्हें ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन कहा जाता है। ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन मतलब समथिंग व्हिच इज देयर एवरीवेयर। सो जैसे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हमें दिखता नहीं है लेकिन वो हर जगह है, वैसे ही वैल्यू सिस्टम कंपनी के हर डिसीजन में छुपा हुआ है। कंपनी जो भी डिसीजन ले रही है कहीं ना कहीं वो अपने वैल्यू सिस्टम को ध्यान में रखकर ले रही है। ये एक सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस प्रोवाइड करता है। अगर आप सबकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, अगर टॉप मैनेजमेंट करप्ट है, उन्हें बस प्रॉफिट कमाना है कि भाई हमें तो पैसा कमाना है बाय हुक और बाय क्रुक, कस्टमर्स के लिए एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बनाओ, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करना है, करो, प्रॉफिट आना चाहिए। नाउ ऑन द अदर हैंड जो एम्प्लॉय है उसकी वैल्यूज डिफरेंट है, उसके ये प्रिंसिपल्स हैं कि भाई डिसऑनेस्टी के साथ काम नहीं करना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, किसी का फायदा नहीं उठाना है, राइट, दिस इज अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। तो दोनों में क्लैश हो गया, क्लैश होगा तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल नहीं होंगे। सो अगर कॉमन वैल्यू सिस्टम है तो एक शेयर्ड पर्पस, कॉमन पर्पस प्रोवाइड करता है, एक टोन सेट कर देता है, मतलब एक कॉमन सिस्टम प्रोवाइड करता है वेयर एवरीवन इज थिंकिंग ऑन द सेम ग्राउंड। सब उन कॉमन वैल्यूज को ध्यान में रखकर ही सारे डिसीजंस लेते हैं। सो जो वैल्यू सिस्टम है ना उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इंप्लीकेशंस होती हैं। इंप्लीकेशंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि अगर कंपनी का वैल्यू सिस्टम एम्प्लॉइज के वैल्यू सिस्टम से मैच कर गया तो ऐसे एम्प्लॉइज दे विल बी हैप्पी टू वर्क इन सच अ कंपनी जहां पर उनकी जैसी ही वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वहां पे वो खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी विद देयर वर्क, एक अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ये हो गई इंटरनल इंप्लीकेशन। एक्सटर्नल इंप्लीकेशन क्या है कि अगर कंज्यूमर्स जो आपके प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं या कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं उनका वैल्यू सिस्टम अगर कंपनी की वैल्यू से मैच कर गया, सो कंज्यूमर्स ऐसी ही कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स बार-बार खरीदेंगे बिकॉज़ उन्हें लगता है कि जिस तरह की वैल्यूज हमारी हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये कंपनी भी ऐसी ही वैल्यूज में बिलीव करती है। क्लियर? एंड साथ ही में जब आप वैल्यू सिस्टम के बारे में लिख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट दिस डेफिनेशन बाय कॉलिंस एंड पोरस। ये आपको एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। कॉलिंस एंड पोरस ने कोर वैल्यूज को डिफाइन किया। उन्होंने कहा वैल्यूज क्या होती हैं, दे आर बीइंग इनहेरेंट एंड सैक्रोसैंट। इनहेरेंट मतलब समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सैक्रोसैंट, सैक्रोसैंट का मतलब होता है सेक्रेड, हाईली वैल्यूएबल। सो कोर वैल्यूज क्या होती हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल पार्ट है और वैल्यूएबल है। दे कैन नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। वैल्यूज के साथ हमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, चाहे अपनी कन्वीनियंस के लिए कि हमारा कोई फायदा हो जाए, कोई शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए, नहीं। वैल्यूज शुड नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड। वैल्यूज रिफ्लेक्ट करती हैं वैल्यूज ऑफ कंपनीज फाउंडर्स। कंपनी जिन्होंने फाउंड करी थी दे मे नॉट बी हियर नाउ बट उनकी वैल्यूज हमेशा फॉलो होनी चाहिए आने वाली जनरेशंस तक भी। एंड वैल्यूज आर द सोर्स ऑफ कंपनीज डिस्टिंक्टिवनेस। वैल्यूज कंपनी को दूसरी कंपनी से डिस्टिंक्ट बनाती है। हर कंपनी की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम होता है एंड दे मस्ट बी मेंटेन्ड एट ऑल कॉस्ट्स। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वैल्यूज। उन्हें मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रैटेजिक इंटेंट। Strategic intent provides framework within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve strategic objectives. In the light of this statement, discuss the elements of strategic intent. So strategic intent के बारे में आपको बता दिया कि क्या होता है और फिर आपसे पूछ लिया गया कि उसके एलिमेंट्स डिस्कस करो। सो अब यहाँ पर हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, अगेन एन इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मीनिंग देंगे और जो यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट भी लिख देंगे। सो स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या होता है, इट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये एक वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। इट इंप्लाइज द पर्पस व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर्स टू अचीव। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्स टू अटेन इन द फ्यूचर। सो इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क within which the firm would adopt a predetermined direction and would operate to achieve the strategic objectives. Now the main part, elements of strategic intent. So strategic intent के elements क्या
क्या है? विजन डिफाइन करता है द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन. इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड प्लान अबाउट द फ्यूचर पोजीशन दैट द कंपनी इज एस्पायरिंग टू अचीव. इट डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड इन फ्यूचर. ये डिपिक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस की एस्पिरेशंस की वो क्या एस्पायर कर रहे हैं, फ्यूचर में कहां पहुंचना चाहते हैं. इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइजेशन वुड लाइक टू बिकम इन फ्यूचर. एवरी सबसिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट्स विजन. एवरी सबसिस्टम मींस एवरी डिपार्टमेंट, एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो द विजन स्टेटमेंट. देन मिशन क्या होती है? मिशन डिस्क्राइब करती है कंपनी का बिजनेस क्या है, गोल्स क्या है और वो गोल्स आपको कैसे अचीव करने हैं. ये एक्सप्लेन करती है रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी. पर्पस क्या है, इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बिजनेस क्या है कंपनी का, व्हाट बिजनेस द कंपनी अंडरटेक्स, व्हाट बिजनेस द कंपनी इज इन, कंपनी करती क्या है. सो मिशन स्टेटमेंट से क्लियर होगा कि कंपनी की प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, एक्टिविटीज क्या है, किस कस्टमर पर उनका फोकस है, उनका एक्जैक्ट रोल क्या है इन दी सोसाइटी. थर्ड एलिमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे आर द बेस ऑफ मेजरमेंट. गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू आप ये मेजर कर पाओगे, असेस कर पाओगे कि आप अपने मिशन और विजन को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. गोल्स आर द एंड रिजल्ट्स. गोल्स एंड रिजल्ट डिपिक्ट करते हैं फाइनल आउटकम जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज अटेम्प्टिंग टू अचीव. ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स वो टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स हैं जो आपको गोल्स तक लेकर जाएंगे, जो आपको गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करेंगे. हाउएवर इन प्रैक्टिस नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन देम एंड दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. एंड फाइनली फोर्थ एलिमेंट इज वैल्यूज. वैल्यूज क्या होती हैं? डीप रूटेड प्रिंसिपल्स हैं जो कि कंपनी के डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करती हैं. सो बेसिकली दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स. दे आर द ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन ऑफ डिसीजंस बाय मैनेजमेंट. ओमनी प्रेजेंट फाउंडेशन, एक स्ट्रांग फाउंडेशन जो कि कंपनी के हर एक डिसीजन और हर एक एक्शन को गाइड करेंगी. एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन वो इन वैल्यूज को ध्यान में रखकर ही डिसीजंस लेंगे. दे क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस. वैल्यूज का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इंप्लिकेशंस होती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. इंटरनल कॉन्सिक्वेंसेस एम्प्लॉय से रिलेटेड और एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस कंज्यूमर से रिलेटेड. तो इंटरनल बेनिफिट्स क्या होंगे, इंप्लिकेशंस क्या होंगी? एम्प्लॉइज ऐसी कंपनी में काम करना चाहेंगे जिनकी वैल्यूज एम्प्लॉइज के वैल्यू सिस्टम से मिलती हैं. सिमिलरली एक्सटर्नल इंप्लिकेशन क्या होगी कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ऐसी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे जिनका वैल्यू सिस्टम कंज्यूमर्स के वैल्यूज और बिलीफ सिस्टम की तरह है. सो हर कंपनी की कुछ कोर वैल्यूज होती हैं जिन्हें फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और उन कोर वैल्यूज को कॉलिंस एंड पोरस ने डिफाइन किया था. एंड आई वुड एडवाइस दैट आप ये डेफिनेशन जरूर लिख के आएंगे अगर आपको वैल्यू या वैल्यू सिस्टम पे क्वेश्चन आता है या स्ट्रेटेजिक इंटेंट में आप वैल्यूज के बारे में लिख रहे हैं. सो कॉलिंस एंड पोरस ने क्या कहा था? दैट कोर वैल्यूज इनहेरेंट होती हैं, सैक्रोसैंट होती हैं, बहुत वैल्यूएबल होती हैं, किसी भी हालत में वी डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद देम. किसी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए या शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वैल्यूज विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज्ड. जैसे कंपनी के फाउंडर्स की वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करती हैं और एक कंपनी को दूसरे से डिस्टिंक्ट बनाती हैं. सो प्लीज उस डेफिनेशन को यहाँ पर आप जरूर मेंशन करेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द कांसेप्ट्स ऑफ विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. व्हाई? बिकॉज़ अभी हमने उन्हें पढ़ा था अंडर द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट के एलिमेंट्स कौन से होते हैं और उन एलिमेंट्स के अंदर हमने विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज समझा था. अब अलग से भी इन्हें डिस्क्राइब किया गया है. नाउ जो इनका मीनिंग है, विजन का मीनिंग क्या होता है, द की टर्म्स, द की पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट, या मिशन का मीनिंग क्या होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे जो बेसिक मीनिंग है दैट रिमेंस द सेम. बट यहाँ पर कुछ और एडिशनल टॉपिक्स ऐड कर दिए हैं. जैसे विजन के बारे में ये टॉपिक आपको दिख रहा है यहाँ पर, एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, ये बता दिया है. सिमिलरली जब हम मिशन पढ़ेंगे तो मिशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, व्हाई मिशन इज नीडेड, वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं अलोंग विद द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू द मीनिंग. सो क्विकली इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो विजन क्या होती है? विजन डिफाइन करती है, एक्सप्लेन करती है, डिलिनेट करती है मैनेजमेंट एस्पिरेशंस फॉर द बिजनेस कि एक कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है वो कंपनी को फ्यूचर में कहां ले जाना चाहती है, अपनी कंपनी के लिए क्या एस्पायर कर रही है, उसकी क्या डिजायर है फ्यूचर को लेके. इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर फोकस, ज्योग्राफिक एंड प्रोडक्ट मार्केट्स टू बी परस्यूड, कैपेबिलिटीज इट प्लान्स टू डेवलप, काइंड ऑफ कंपनी मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट, फोकस ऑन दिस वर्ड हियर. ये सारी चीजें मिशन में भी होती हैं. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दैट मिशन में हम बात करते हैं अभी हमारे पास क्या है, करंटली प्रेजेंटली क्या कैपेबिलिटीज हैं, प्रेजेंटली किस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम कस्टमर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना रहे हैं, कौन से कस्टमर्स पर अभी हमारा फोकस है. लेकिन जब हम विजन की बात कर रहे हैं तो यही सारी चीजें बट ट्राइंग टू क्रिएट कि हम फ्यूचर में क्या एस्पायर कर रहे हैं, किस तरह की कंपनी हम बनाना चाह रहे हैं, ट्राइंग टू क्रिएट. देन हमने समझा था दैट विजन इज अ ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट को हम रोड मैप भी बोल सकते हैं, मतलब एक प्लान है, एक डिटेल्ड प्लान कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन क्या होगी. सो इट प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ वेयर वी आर टू गो, वेयर अ कंपनी वांट्स टू बी, where a company wants to land. तो हम ये सारी टर्म्स यूज करते हैं विजन के लिए. ये डिस्क्राइब करता है where the organization wants to land, like I already told you. ये डिपिक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की एस्पिरेशंस, पॉइंट नंबर 1 सेम पॉइंट था. ये कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस टू द स्टेक होल्डर्स. तो सिर्फ हमें विजन से ये नहीं पता लगता कि मैनेजमेंट की एस्पिरेशंस क्या है अपनी कंपनी को लेकर, वो से किस लेवल तक लेकर जाना चाहती है इन द फ्यूचर. एट द सेम टाइम उन एस्पिरेशंस को जो हम अपनी कंपनी के लिए करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर, उसे कम्युनिकेट करना टू अदर स्टेक होल्डर्स. दैट इज आल्सो द पर्पस ऑफ विजन कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वेदर दे आर कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, जो भी हमारी विजन स्टेटमेंट पढ़ेगा उन्हें ये समझ में आएगा कि ये कंपनी क्या एस्पायर कर रही है, इसका फ्यूचर प्लान क्या है. सो स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ऑल दोस पार्टीज और पीपल who are associated with the company in one or the other way. कंपनी के सप्लायर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं क्योंकि इनका कुछ ना कुछ स्टेक है इन द बिजनेस, इनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है कंपनी में, बिजनेस में. ये डायरेक्ट करता है एनर्जीज ऑफ पर्सनल इन कॉमन डायरेक्शन. जो भी लोग काम कर रहे हैं, पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो भी इंडिविजुअल्स, जो भी वर्कर्स, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उन सबको एक कॉमन डायरेक्शन दी जाती है बाय विजन. एवरीवन नोस कि अच्छा हमें इस विजन के लिए काम करना है, इस फ्यूचर पोजीशन को अटेन करने के लिए एफर्ट्स डालने हैं. अब डिस्कस करते हैं अ न्यू टॉपिक रिलेटेड टू विजन, व्हिच इज एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन. कि जब कंपनीज अपने लिए विजन स्टेटमेंट बनाती हैं तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है. सो विजन स्टेटमेंट बनाते हुए कंपनीज को किस चीज का ध्यान रखना है? फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट शुड इन्वॉल्व क्रिएटिविटी. अब अपने लिए विजन देखना है कि हमें फ्यूचर में किस लेवल तक जाना है, हमें फ्यूचर में और क्या करना है, हमारी फ्यूचर पोजीशन क्या होगी. तो ये आप बहुत क्रिएटिवली सोचोगे, इनोवेटिवली सोचोगे कि भाई एनवायरमेंट में क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. उन्हें ध्यान में रख के आपको एक क्रिएटिव विजन स्टेटमेंट क्रिएट करनी है, समथिंग रिफ्रेशिंग, समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव. सेकंडली, स्ट्रेटेजिक विजन फॉर्मुलेट करने के लिए हमें इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत पड़ती है, इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है. रिमेंबर हम समझते थे प्लानिंग के बारे में जब हमने प्लस 2 में अगर कॉमर्स आपके पास था और आपने प्लानिंग के बारे में समझा कि प्लानिंग क्या होती है, तो उसका एक फीचर होता था प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. मेंटल एक्सरसाइज क्यों? बिकॉज़ हम बहुत सोच समझकर लॉजिकली फैक्ट्स के बेसिस पर रैशनली डिसीजंस लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि व्हाट डू वी नीड टू डू, हाउ डू वी हैव टू डू इट, किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, कैसे हमें काम करना है. सिमिलरली जब कंपनी अपने लिए विजन देख रही है तो वो गेसेस के बेसिस पर नहीं देख रही है, हम हवा में तुक्के नहीं मार रहे हैं कि भाई हम तो ये कंपनी बनेंगे, वो कंपनी बनेंगे. सारे फैक्ट्स और फिगर्स को ध्यान में रख के, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को ध्यान में रखकर, लॉजिकली रैशनली सोच समझकर ही हम इंटेलिजेंटली कंपनी के लिए विजन बनाते हैं. सो जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है तो जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो बहुत सोच समझकर करते हो ना, कि ऐसी तुक्के मार के कर लेते हो कि आज मुझे एक सपना है कि मुझे ये करना है तो आई विल डू दिस. आप ये भी तो देखोगे कि वो करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं. सो बहुत ही रैशनली लॉजिकली आप डिसीजंस लेते हो. सिमिलरली विजन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हुए भी इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप का यूज होगा, मतलब इंटेलिजेंस का यूज होगा, लॉजिक्स का यूज होगा. थर्ड, स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट्स एंथुसियाज्म. विजन ऐसी होनी चाहिए जिसे पढ़ के, जिसे सुन के एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन उनमें एक एक्साइटमेंट पैदा हो जाए, एक एंथुसियाज्म पैदा हो जाए, एक एनर्जी आ जाए दैट भाई अब इस विजन को अचीव करने के लिए हमें एफर्ट्स डालने हैं. वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग टू अचीव द विजन
And the last point is that vision statement should give clear direction. Vision statement पढ़ के everyone in the organization should be clear कि हमारी direction क्या है, मतलब हमें future में क्या करना है. Good vision statement clearly illuminates the future direction of the organization. So these are the 4 essentials of strategic vision. क्या essentials है? अब ये acronym पर आओ. D stands for direction, I stands for intelligent entrepreneurship, C stands for creativity and E stands for enthusiasm. So इससे आप याद रख पाओगे कि कौन-कौन से essentials होते हैं. Clear everyone? Now the concept of mission. So हम डिस्कस कर चुके हैं mission क्या होता है. mission आपका reason for existence होता है. It is the purpose for which the organization is existing. ये हमें बताता है कि कंपनी का business क्या है. What business are we in? या what business a company undertakes. So Peter Drucker ने कहा that mission gives a basic answer to the question what business are we in. हमें ये clarity मिलती है mission statement को पढ़ के. At the same time उन्होंने कहा that the answer to this must be stated in terms of marketing or external perspective. mission का हमेशा external perspective होता है. मतलब आप customers के लिए क्या कर रहे हो, आप society के लिए क्या कर रहे हो. What are you providing them? So always marketing or external perspective, never internal perspective. कंपनी क्या कर रही है, हम ये प्रोड्यूस करते हैं, हम ये मैन्युफैक्चर करते हैं, वो पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए. जनरल टर्म्स में हम मिशन नहीं लिखते हैं. जब भी मिशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी, कीप कस्टमर्स इन माइंड, सोसाइटी इन माइंड, व्हाट आर वी प्रोवाइडिंग फॉर देम, नॉट व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग. अब यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, यहाँ पे लिखा है वी प्रोवाइड बेस्ट कॉस्मेटिक्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, और यहाँ पे लिखा है वी प्रोड्यूस बेस्ट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी. एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दीस वर्ड्स. यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड, यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूस. तो अगर आप ध्यान दोगे, समझने की कोशिश करोगे, जब हम बोल रहे हैं प्रोड्यूस, तो उसका जो फोकस है वो हम पर है, हम ये बनाते हैं. लेकिन जब आप लिख रहे हो वी प्रोवाइड, तो इसका मतलब हम आपके लिए ये दे रहे हैं, आपके लिए ये प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं. तो यहाँ पर फोकस है ऑन सोसाइटी, ऑन पीपल, ऑन कस्टमर्स, लेकिन यहाँ पर फोकस है ऑन द कंपनी इटसेल्फ. प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव ये नहीं होना चाहिए है, ये होना चाहिए. एंड देन द सेम बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू मिशन स्टेटमेंट जो हम ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक इंटेंट में समझ चुके हैं. दैट मिशन आंसर करती है बेसिक क्वेश्चन व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम करते क्या हैं, या व्हाट बिजनेस अ फर्म अंडरटेक्स. ये एक्सप्लेन करती है द रीजन और द पर्पस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव. ये पोटेंशियल शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है इन अंडरस्टैंडिंग द पर्पस फॉर व्हिच द फर्म एग्जिस्ट. विजन पढ़ के ये समझ में आएगा कि कंपनी की फ्यूचर पोजीशन क्या है, कंपनी फ्यूचर में क्या एस्पायर कर रही है, और मिशन स्टेटमेंट पढ़ के ये समझ में आएगा कि कंपनी का पर्पस क्या है, क्यों अभी एग्जिस्ट कर रही है, कस्टमर्स के लिए क्या कर रही है. इट हेल्प्स स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई व्हाट बिजनेस द फर्म अंडरटेक्स. वही वाली बात, व्हाट बिजनेस आर वी इन, व्हाट वी डू. इट डिफाइंस प्रेजेंट कैपेबिलिटीज, एक्टिविटीज, कस्टमर फोकस एंड रोल इन सोसाइटी. पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेजेंट. और यही चीज जब हम बोलते हैं ट्राइंग टू क्रिएट, तो वो हो जाता है विजन. सो कंपनीज अपनी विजन तक कैसे पहुंचेंगी, मिशन फुलफिल करते हुए. अभी उन्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगी, कुछ बिजनेस करेंगी, मार्केट्स को केटर करेंगी, तब जाकर हम जो लॉन्ग टर्म व्यू देख रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे. सो दीस आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजंस फॉर हैविंग अ मिशन स्टेटमेंट. ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाई डू कंपनीज हैव अ मिशन स्टेटमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग अ मिशन स्टेटमेंट, व्हाट आर द रीजंस फॉर हैविंग अ मिशन स्टेटमेंट. वन एंड सेम थिंग. तो क्या जरूरत है मिशन स्टेटमेंट की, कंपनी क्यों बनाते हैं मिशन स्टेटमेंट. फर्स्ट पॉइंट, मिशन स्टेटमेंट इंश्योर्स यूनानिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब एक यूनिटी ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता है मिशन स्टेटमेंट. सबको ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइट कर देता है, सबके लिए एक कॉमन पर्पस डिफाइन करता है, जिसको अचीव करने के लिए एवरीवन स्टार्ट्स पुटिंग द एफर्ट्स. सेकंडली, मिशन स्टेटमेंट बिकम्स अ स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज. एक बेसिस बन जाता है मिशन स्टेटमेंट फॉर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज. हाउ? बिकॉज़ मिशन स्टेटमेंट क्या डिफाइन करता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, डिटेल में हमें पता लगता है द प्रोडक्ट्स, द बिजनेसेस, द मार्केट्स दैट द कंपनी इज टारगेटिंग, द कंपनी इज केटरिंग टू. अब अगर हमें ये पता लग गया है कि बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट्स कौन से बनाने हैं, सर्विसेज कौन सी प्रोवाइड करनी है, किन कस्टमर्स के लिए, किन मार्केट्स में, तो अब उसके बेसिस पर डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए रिसोर्सेज अरेंज किए जाएंगे और एलोकेट करे जाएंगे. देन मिशन स्टेटमेंट आल्सो प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेशन. ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है कि जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं काम करने के लिए, उन रिसोर्सेज को आपको अच्छे से यूज भी करना है. यू डोंट हैव टू मिसयूज द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए है. देन मिशन स्टेटमेंट आल्सो एस्टैब्लिशेस जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. मतलब एक अच्छा पॉजिटिव क्लाइमेट क्रिएट होता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होता है थ्रू मिशन स्टेटमेंट, क्योंकि मिशन स्टेटमेंट सबको यूनिटी ऑफ पर्पस प्रोवाइड करता है, कॉमन पर्पस, और उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए किसी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, बिकॉज़ एवरीवन इज क्लियर कि हमें करना क्या है. तो एक जनरल टोन सेट कर देता है, काम करने का एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है. देन मिशन स्टेटमेंट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोस हु कैन आइडेंटिफाई विद ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन. मिशन स्टेटमेंट एक फोकल पॉइंट की तरह एक्ट करता है, अ पॉइंट ऑफ फोकस, एक सेंट्रल पॉइंट जिस पर सभी का फोकस होगा. सब समझ पाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन पर्पस क्या है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है. देन मिशन स्टेटमेंट आल्सो फैसिलिटेट्स ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर. मतलब वो हेल्प करता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए बाय कन्वर्टिंग देम इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर. वर्क स्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट टास्क्स में डिवाइड कर देते हैं, कौन कौन सा काम एक्टिविटी हमें करना है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, कौन सा इंडिविजुअल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, आपका सुपीरियर कौन होगा, आपका सबऑर्डिनेट कौन होगा, कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी होगी. सो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को फुलफिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक वर्क स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने में मिशन स्टेटमेंट हेल्प करता है. बिकॉज़ शुरुआत कहां से होती है, हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं. ये क्लियर हुआ, उसके बेसिस पे हम रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उसके लिए काम करते हैं. लेकिन वो काम कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, किसकी कितना रोल है, रिस्पांसिबिलिटी है, ये सब करने के लिए एक वर्क स्ट्रक्चर होना जरूरी है. तभी आप अपने डे टू डे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाओगे. एंड फाइनली मिशन स्टेटमेंट आल्सो स्पेसिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ पर्पस इनटू गोल्स. तो हमें पता है मिशन स्टेटमेंट क्या बताता है, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, कंपनी का पर्पस क्या है. तो पर्पस तो क्लियर होता ही है, कॉमन पर्पस, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस. एट द सेम टाइम उस पर्पस को अचीव करने के लिए कंपनीज छोटे-छोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स भी सेट कर पाती हैं. देन मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू मिशन स्टेटमेंट व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन को उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. इट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी. मतलब हमें पता लगता है मिशन स्टेटमेंट से कि इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इस कंपनी का रीजन फॉर एग्जिस्टेंस क्या है. तो एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन को उनकी एक स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है, एक बिजनेस एम्फेसिस देती है कि हमारा किस बिजनेस पर फोकस है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका पाथ फॉर डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है. मतलब हमें किन एरियाज में ग्रो करना है, व्हिच एरियाज वी विल सर्व, कौन से एरियाज को हम केटर करेंगे, कौन से कस्टमर्स को, कौन सी मार्केट्स को, ये सब क्लियर होता है. सेकंड, एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट हाईली पर्सनलाइज्ड होती है. हाईली पर्सनलाइज्ड मतलब हाईली यूनिक. हर कंपनी की एक यूनिक मिशन स्टेटमेंट होगी. बिजनेस सेम हो सकता है बट आपकी मिशन स्टेटमेंट सेम नहीं हो सकती. नेक्स्ट पॉइंट, मिशन शुड नेवर बी टू मेक प्रॉफिट. मिशन स्टेटमेंट पढ़ के कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट कंपनी पैसा बनाने के लिए बैठी है. रिमेंबर, इट शुड ऑलवेज हैव अ
सोशल ओरिएंटेशन, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वेलफेयर मोटिव कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, उनके लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हो। एंड फाइनली एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स शो करती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताती है, जैसे कि कंपनी की टेक्नोलॉजी क्या है, कस्टमर ग्रुप्स कौन से हैं, किन ग्रुप्स को आप केटर कर रहे हैं, कस्टमर्स की कौन सी नीड्स को सैटिस्फाई कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, कॉम्पिटेंसीज क्या है। कॉम्पिटेंसी क्या होता है? कॉम्पिटेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज दैट अ कंपनी हैज प्लस डिफरेंट कैपेबिलिटीज। कंपनी के पास किस तरह के एसेट्स हैं, क्या वो ओन करती है और उन एसेट्स को वो यूज कैसे करती है, एंड कंपनी की एक्टिविटीज क्या है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कंपनी कर रही है। ये सभी एलिमेंट्स एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट में होने चाहिए, बिकॉज ये इंडिकेट करता है बाउंड्री ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन किन हदों में रहकर काम करेगी, उसकी बाउंड्रीज क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हम ऑलरेडी बेसिक मीनिंग समझ चुके हैं। सो क्विकली वो पॉइंट्स हम रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑल ऑर्गेनाइजेशन सेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी विजन और मिशन अचीव करने के लिए कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ेंगे, और ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, बिकॉज जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज होगा, कंपनीज की स्ट्रेटजी चेंज होंगी, कंपनीज के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स चेंज होंगे, कंपनीज के काम करने का तरीका चेंज होगा। सो इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। सेकंडली, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू अ कंपनी। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, आप किस आउटकम को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको कब तक ये रिजल्ट अचीव करना है, इतने रिसोर्सेज में करना है, तब तक आप अपनी मिशन विजन को अचीव नहीं कर पाओगे। सो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जब सेट होते हैं तो उससे सबको एक क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या अचीव करना है, कितने टाइम तक करना है, कितनी कॉस्ट में करना है। ये सब कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से पता लगता है। सो दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्क स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है और रिसोर्सेज को डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए एलोकेट किया जाता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक्ट एज बेंचमार्क्स, यार्डस्टिक फॉर गाइडिंग एंड इवैल्यूएटिंग द फर्म्स परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, उस पर ट्रैक रखने के लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का यूज किया जाता है, बिकॉज दे एक्ट एज बेंचमार्क्स, यार्डस्टिक। मतलब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एक मेजरिंग स्केल की तरह होते हैं, जिसके थ्रू हम कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं। विजन एंड मिशन को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दिस वी नो दैट पहले विजन और मिशन बनाई जाएगी बाय कॉर्पोरेट लेवल, और फिर उसे अचीव करने के लिए छोटे छोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। ये दोनों टर्म्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर। इन दोनों टर्म्स को एक ही माना जाता है, दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। बट यस, दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज प्रैक्टिकली इन्हें इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, कंपनीज इन्हें एक ही मानती है, डजंट मीन दैट इनमें डिफरेंस नहीं है। गोल एक शॉर्ट स्टेटमेंट है जो कि आपके डिजायर्ड आउटकम को, एंड रिजल्ट को बताती है कि आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ये थोड़ा ब्रॉडली लिखा जाता है, इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। फोकस कहां पे होता है? एंड रिजल्ट पे। एंड रिजल्ट क्या है कि मैं पास होना चाहती हूँ या मैं 80% मार्क्स लेकर आना चाहती हूँ। दिस इज द एंड रिजल्ट आई वांट। तो ये हो गया मेरा गोल, डिजायर्ड आउटकम, क्या मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं स्पेसिफिक एक्शनेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स। ये वो छोटे छोटे टारगेट्स हैं जो आपको गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। तो जैसे गोल को थोड़ा ब्रॉडली लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना है, विद इन 1 ईयर पास करना है, और कैसे करना है, एक दिन में हमें कितना कवर करना है, बाय द एंड ऑफ 1 वीक हमारा कितना सिलेबस हो जाना चाहिए। सो ये सब होते हैं आपके छोटे छोटे टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स जो स्पेसिफिक होते हैं, जिसके बेसिस पर आप एक्शंस लेना शुरू करते हो और अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। अगर आप इन डे टू डे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते जाओगे तो दैट मींस जो आपका गोल है आप उसे भी फुलफिल कर लोगे। गोल फुलफिल हो गया तो मिशन फुलफिल होगी, मिशन फुलफिल होगी तो आप अपनी विजन को अचीव कर पाओगे। सो ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि आपको क्या स्पेसिफिक एक्शंस लेने पड़ेंगे गोल को फुलफिल करने के लिए। नाउ द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल। जैसे विजन के एसेंशियल्स हैं, मिशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वैसे ही ऑब्जेक्टिव्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड एज इट इज ये पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, नो एक्सप्लेनेशन इज टू बी प्रोवाइडेड। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्टिव्स की? फर्स्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशनशिप डिफाइन करता है विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, किस तरह का चैलेंज है, उसके बेसिस पर कंपनीज अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। सो हमेशा जब भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर किया जाएगा। सेकंडली, ऑब्जेक्टिव्स फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं इन अचीविंग द मिशन एंड पर्पस। दिस वी नो, मिशन एंड पर्पस अचीव करने के लिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। देन ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जब एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ऑब्जेक्टिव है कि हमें सेल्स इंक्रीज करनी है बाय 10% इन नेक्स्ट 1 ईयर। सो अब ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैं डिसीजंस लूंगी कि मुझे क्या क्या करना है, किस तरह के एक्शंस लेने हैं, क्या हमें मार्केटिंग एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, क्या हमें सेल्स फोर्स इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट। सो वो सारे डिसीजंस लिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो हमने सेट किया है। देन ऑब्जेक्टिव्स दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये तो उनका मीनिंग ही है, ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए, परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या आप अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर पाए, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि आपने वैसा ही परफॉर्म किया, इफ नॉट करेक्टिव एक्शंस लेना। ऑब्जेक्टिव्स कंक्रीट होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट। हमने पढ़ा ना कि ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक टर्म्स में लिखे जाते हैं, क्या आपको करना है, कब तक करना है, कितना करना है, उसे आप प्रॉपर्ली क्वांटिफाई कर सकते हैं। सो कंक्रीट मतलब टू द पॉइंट, स्पेसिफिक होता है। ऑब्जेक्टिव्स दे शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम। मतलब ऑब्जेक्टिव्स में हमेशा टाइम डायमेंशन लिखना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव आपको कब तक फुलफिल करना है। देन ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल। ऑफ कोर्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो मेजरेबल होना चाहिए। अगर वो मेजरेबल नहीं है दैट मींस वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग इन नेचर। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जिसे फुलफिल करने के लिए मजा भी आए, स्टाफ मोटिवेटेड फील करे। ऑब्जेक्टिव्स शुड कोरिलेट विद वन अनदर। नाउ एक कंपनी के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सेल्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, प्रॉफिट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वेलफेयर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, इनोवेशन रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जो भी ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर रहे हैं दे शुड कोरिलेट विद वन अनदर। सभी ऑब्जेक्टिव्स आपको आपका कॉमन पर्पस अचीव करने में हेल्प करेंगे। एंड फाइनली, ऑब्जेक्टिव्स दे शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स। मतलब जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो रियलिस्टिक होने चाहिए हैं। जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है वो अचीव करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज भी होने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें रेवेन्यूज इंक्रीज करने हैं बाय 10%, 20% इन 1 ईयर, लेकिन ये करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ नहीं है, हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। तो जब भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाए आपको सिर्फ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में नहीं रखना है, खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट भी ध्यान में रखना है। वो ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं जो आपके लिए फीजिबल भी हो अचीव करना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हिच इज नीड फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें बहुत जनरल सी बातें आपको करनी है कि ऑब्जेक्टिव्स दोनों तरह के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। बेसिकली जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो एक तरह से गोल की बात कर रहे हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स कंपनीज को सेट करने पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, अगर उन्हें अपनी मिशन और विजन को अचीव करना है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से हो गए, उनका क्या पर्पस होगा। सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मे बी क्वार्टरली बेसिस पर आपने सेट करे हैं, एनुअल बेसिस पर आपने सेट करे हैं, एक साल में आप क्या करना चाहते हो, ये आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। एनीथिंग लेस देन 1 ईयर व्हिच ऑफ कोर्स वेरीज फॉर कंपनी टू कंपनी। पर्पस क्या होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स का कि आपको इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करनी है। मतलब आप ज्यादा लंबे टाइम तक वेट नहीं करोगे। आपका ऑब्जेक्टिव है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो हमें जल्दी पता लगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम उन प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व कर पाए। क्योंकि अगर हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ही फुलफिल नहीं होंगे तो हम अपनी
अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को कैसे फुलफिल करेंगे। और अगर हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, सो दिस मींस दैट हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल करेंगे। सो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से हमें पता लगता है कि हम किस स्पीड में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने वाले हैं। अगर हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है, क्वार्टरली ऑब्जेक्टिव, एनुअल ऑब्जेक्टिव, तो मतलब जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है भाई वो अचीव करना मुश्किल होने वाला है। सो ये इंडिकेट करेगा कि क्या हम अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाएंगे। अगर हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते जा रहे हैं, दिस मींस दैट लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होगा। इन दैट केस जो हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है दैट विल बी इक्वल टू आवर लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव। ये कंप्लीट करते जाओ तो आप अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर लोगे। लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव की बात करें, सो एनीथिंग बियॉन्ड 1 ईयर, 2 to 5 इयर्स के लिए जब हम ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं, दैट मींस इट्स अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अगेन कंपनी टू कंपनी ये वेरी कर सकता है। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या होता है कि हम स्ट्रेटजीज चेंज कर सकें, ऐसी स्ट्रेटजीज बना सकें जिससे कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाएं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या होता है कि इमीडिएट अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो आप वो कर पाएं। बिकॉज अगर आप वो इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपकी लॉन्ग टर्म के लिए जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी और आप एक अच्छी स्ट्रेटजी डिवाइस कर पाओगे अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करने के लिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट करता है रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम सर्टेन स्ट्रेटजीज। रिमेंबर गोल का पर्पस क्या होता है, गोल क्या डिफाइन करता है, एंड रिजल्ट। सो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की तरह से हम गोल की बात कर रहे हैं और उसका फोकस है एंड रिजल्ट पे, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कि हम अपने इस एंड रिजल्ट को अचीव कर पाए। सो नाउ अभी जो टॉपिक है नीड फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ये इट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्डली इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आया है, बट जो क्वेश्चन यहाँ से आया है वो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। एंड दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो बार बार इंस्टीट्यूट पूछ लेता है, दैट व्हाट आर द 7 क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट एरियाज, वाइटल एरियाज वेयर अ स्ट्रेटेजिक मैनेजर हैज टू फोकस व्हाइल फॉर्मुलेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव डिजायर्ड लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स और प्रॉस्पेरिटी। मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक मैनेजर को कौन से 7 इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करना पड़ेगा, किन एरियाज में उसे ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा आंसर होता है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देनी है, आपके मॉड्यूल में, सिलेबस में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द एरियाज ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेटिंग, किन एरियाज में हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए किन एरियाज में स्ट्रेटेजिक मैनेजर को फोकस करना पड़ेगा। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी। लॉन्ग रन में कंपनी चाहेगी कि उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज होंगे, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करके, अपनी कॉस्ट को कम करके। सेकंडली कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना मतलब हर एक्टिविटी, हर काम एफिशिएंटली करना, इफेक्टिवली करना, कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट में आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करनी है। पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी दैट कैन बी अनदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, दैट यू हैव टू एक्ट इन अ रिस्पांसिबल मैनर टुवर्ड्स द पब्लिक। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ साथ आपको एनवायरनमेंट का ध्यान देना है, आपको कम्युनिटी पर ध्यान देना है, उन पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए आपके प्रोडक्ट्स का, उन्हें एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स नहीं प्रोवाइड करने हैं, उन्हें अच्छी सर्विसेज देनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। सो वो सब आपका आता है पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी में, ये भी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। देन एम्प्लॉय डेवलपमेंट, टाइम के साथ साथ उनकी स्किल्स, नॉलेज को इंक्रीज करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। बिकॉज़ अगर आपके एम्प्लॉयज अपडेटेड रहेंगे, इफ योर एम्प्लॉयज आर स्किलफुल, तो वो अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिलेशंस, एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी जरूरी है और अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करना भी जरूरी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कोऑर्डियल रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन डिफरेंट एम्प्लॉयज, बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी सैटिस्फाइड विद द वर्क एनवायरनमेंट। देन कॉम्पिटिटिव पोजीशन इंक्रीज करना, एक स्ट्रांग डोमिनेटिंग पोजीशन क्रिएट करना, दैट इज अनदर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज। एंड फाइनली टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, कंपनीज चाहेंगे कि हम टेक्नोलॉजिकल लीडर बने, मतलब कुछ यूनिक टेक्नोलॉजी डेवलप करें, या वी शुड बी द फर्स्ट वंस टू यूज द टेक्नोलॉजी। अगर एक टेक्नोलॉजी आई है तो सबसे पहले हमें उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना है बिफोर आवर राइवल्स, दैट इज टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। सो ये 7 एरियाज हैं जिसमें कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स को इन 7 एरियाज पर ध्यान देना है। और स्टूडेंट्स, अब हमने सारा कांसेप्ट डिस्कस कर लिया है डिटेल में, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एवरीथिंग। नाउ लेट्स सी किस तरह से हमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल टॉपिक से आपको एक अलग क्वेश्चन आ सकता है। विजन से अलग उसके एसेंशियल्स क्या हैं, मिशन से आ सकता है, मिशन की नीड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको एक केस सिनेरियो आ सकता है जहां पर आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करनी है, खुद करनी है। या तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मिशन या विजन लिखिए, या आप एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, अपने लिए एक विजन और मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करिए। तो अब हम अपने तरीके से उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, या हमें केस में कुछ की पॉइंट्स दिए होंगे वो हमें ध्यान में रखकर मिशन और विजन ड्राफ्ट करनी है, जैसे कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो लेट्स टेक अ लुक एट इट। मिस्टर राज हैज बीन हायर्ड एज अ सीईओ बाय XYZ लिमिटेड, एन एफएमसीजी कंपनी दैट इज डाइवर्सिफाइड इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स। एक कंपनी है जहां पे मिस्टर राज को हायर किया गया है एज सीईओ और उन्होंने अभी डाइवर्सिफाई किया है इनटू अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स, मतलब अब वो कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में आए हैं। द कंपनी इंटेंड्स टू लॉन्च द फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स, तो वो अपना एक नया ब्रांड बाय द नेम फील गुड ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स ये लॉन्च करना चाह रहे हैं। XYZ विशेस टू एनरिच द लाइव्स ऑफ पीपल विद इट्स प्रोडक्ट्स दैट आर गुड फॉर द स्किन एंड आर प्रोड्यूस्ड इन इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर यूजिंग हर्बल इंग्रेडिएंट्स। तो अब यहाँ पर हमें कुछ पता लग गया ताकि जो कंपनी है इसकी क्या इंटेंशन है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में ये अच्छी कंपनी बनना चाहती है इन द फ्यूचर, जिसके लिए वो सेफ कॉस्मेटिक्स प्रोवाइड करना चाहती है, जो स्किन के लिए सेफ है, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर में वो बनाना चाहती है कि एनवायरमेंट पर कोई हार्मफुल इंपैक्ट ना हो, एट द सेम टाइम हर्बल इंग्रेडिएंट्स यूज करना चाहती है, उसके थ्रू वो लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी बनना चाह रही है इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें पता लग गए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू ड्राफ्ट विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, कीपिंग इन माइंड दैट आप मिस्टर राज हैं, आपको मिस्टर राज के शूज में जाना पड़ेगा, आप सीईओ हैं। तो अब आप बताइए कि आप एज अ सीईओ किस तरह के विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर दिस कंपनी। सो अगेन जैसे आई टोल्ड यू दैट डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, पहले हम देंगे विजन का मीनिंग और फिर विजन स्टेटमेंट बनाएंगे। सिमिलरली हम देंगे मिशन का मीनिंग और फिर हम मिशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो विजन क्या होती है, विजन रेफर्स टू द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन, ये बताता है कि वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड। अब यहाँ पर हमें डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है और पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेन पार्ट जो हमारा है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द विजन स्टेटमेंट। सो नाउ मिस्टर राज कौन है, सीईओ है ऑफ द कंपनी, तो उनका जो ब्रांड है कॉस्मेटिक का ऊपर उन्होंने दिया है क्या नाम है, फील गुड ब्रांड। सो अब वो इस फील गुड कॉस्मेटिक ब्रांड को किस पोजीशन पर लेके जाना चाह रहे हैं, दैट विल बी योर विजन, बिकॉज विजन ऑलवेज रिलेट्स टू द फ्यूचर पोजीशन। सो आप किस तरह की विजन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं, टू बी इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी दैट इंप्रूव्स लुक्स, गिव एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू पीपल। तो यहाँ पर अब ये स्टेटमेंट वेरी कर सकती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आप अपने तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं। याद आपको ये रखना है कि इट शुड रिलेट टू द फ्यूचर, इंडियाज लार्जेस्ट ब्यूटी केयर कंपनी, तो ये फ्यूचर में जाकर कहीं पर होगा, ऐसा क्लियर। फिर अब हम आ जाएंगे मिशन पर। मिशन के बारे में बता दो, मिशन क्या करती है, ये डिलीनेट करती है, मतलब ये डिस्क्राइब करती है कंपनी के बिजनेस को कि कंपनी क्या कर रही है, क्या गोल्स हैं, उन गोल्स तक कैसे पहुंचना है, मतलब अभी आपका क्या रीजन है फॉर एक्जिस्टेंस। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को समझ में आएगा कि कंपनी का पर्पस क्या है, सोसाइटी के लिए, कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट्स बना रहे हो। नाउ हमें मिशन स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करनी है, टू बी इन बिजनेस ऑफ कॉस्मेटिक्स, टू एनहांस द लाइव्स ऑफ पीपल एंड गिव देम कॉन्फिडेंस टू लीड, टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम हार्मफुल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट एंड सन रेज
बेस, क्योंकि उस पे लिखा था इकोलॉजिकल फ्रेंडली मैनर में प्रोडक्ट्स बनाएंगे टू प्रोड्यूस हर्बल कॉस्मेटिक्स यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। केस स्टडी में हमें ये भी मेंशन है कि हर्बल इंग्रेडिएंट्स का यूज करना है, इकोलॉजिकल बेनिफिशियल मैनर में करना है, तो इन वर्ड्स को यूज करते हुए आप मिशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मस्ट बी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल टू सर्व द इंटेंडेड रोल। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, दैट अच्छे ऑब्जेक्टिव्स कुछ फीचर्स को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करते हैं। सो व्हाट आर दोस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगेन कभी भी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, पहले हमने इंट्रो दे दी। इंट्रो में हमने क्या बता दिया कि ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये कंपनी के टाइम बेस्ड मेजरेबल परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं, जिसके बेसिस पर कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करती है और अपनी प्रोग्रेस को मेजर करती है कि हमारी स्ट्रैटेजी किस एक्सटेंट तक हमें हमारे रिजल्ट्स तक लेकर जा रही है, हमें हमारे गोल्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रही है। सो दे आल्सो फंक्शन एज यार्डस्टिक। यार्डस्टिक मतलब अ टूल टू ट्रैक और मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। सो पहले बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स एंड देन द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन को रिलेट करता है विद इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मिशन को अचीव करने में हेल्प करते हैं, विजन और मिशन को अचीव करने के लिए ही हम छोटे छोटे टारगेट्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है, आपने उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया है या नहीं किया है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि अब आपको क्या चेंजेस करने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक होते हैं, कंक्रीट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स टाइम बेस्ड होते हैं, जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं अपने लिए उसमें टाइम डायमेंशन जरूर आनी चाहिए कि आप कब तक उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाह रहे हैं, विद इन अ मंथ, बाय द एंड ऑफ 1 ईयर। तो आप हमेशा टाइम जरूर उसमें मेंशन करते हैं। और क्यों आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि क्या अचीव करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कितनी कॉस्ट में करना है, व्हाई आर यू बीइंग स्पेसिफिक, सो दैट आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाओ। जब तक मेजर नहीं कर पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो ऑब्जेक्टिव्स शुड बी मेजरेबल आल्सो एंड कंट्रोलेबल आल्सो। और वो कब होंगे मेजरेबल कंट्रोलेबल, जब वो टू द पॉइंट होंगे, स्पेसिफिक होंगे, क्लोज्ड एंडेड होंगे, आपने कोई स्कोप नहीं छोड़ा ये समझने के लिए कि आपको क्या अचीव करना है, what needs to be achieved, how it needs to be done, when it needs to be done, and within what cost you need to do it, right? So सब कुछ आपने specify कर दिया। At the same time objectives challenging होते हैं, they should motivate the employees to work for it, and different objectives should correlate with each other, which means that हमारी मिशन तो एक है, हमारा जो ओवरऑल गोल है वो तो एक है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, but all those objectives they will correlate, they will connect to each other because purpose common है, mission common है। And objectives को हमेशा सेट किया जाता है keeping in mind the resources of the organization, internal strengths and weaknesses also and external environment also। बाहर क्या चल रहा है, किस तरह की opportunities और threats हैं, उसको हम मैच करेंगे with our internal resources और तब जाके objectives सेट किए जाते हैं। So these are the 9 important characteristics of objectives। Now we'll start with the next topic which is strategic levels in organization, an important topic। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है या आपको किस तरीके की फॉर्म में आ सकता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से लेवल की बात करी जा रही है, आपको डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। सो जब आपको पूछा जा रहा है व्हाट आर द स्ट्रैटेजिक लेवल्स या व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो लिखने का तरीका एक ही होता है। इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उनमें जब डिफरेंसेस पूछे गए हैं तो यूजुअली हम टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट पैराग्राफ की फॉर्म में सारे पॉइंट्स लिख देता है। अगर आप टैबुलर फॉर्म में भी लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। पॉइंट इज जो भी आप लिख रहे हो वो रेलेवेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। सो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं रिलेटेड टू द स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस। स्टूडेंट्स, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं व्हिच आर डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल बिजनेसेस, जो मल्टी बिजनेस फर्म्स होती हैं, मल्टी लोकेशनल फर्म्स होती हैं, डिफरेंट लोकेशंस में वो बिजनेस कर रही हैं। सो ऐसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में जो स्ट्रैटेजीज बनती हैं यूजुअली वो बनती हैं एट 3 लेवल्स। फर्स्ट कॉर्पोरेट लेवल, सेकंड बिजनेस और डिविजनल लेवल, एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल। अब कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है, कॉर्पोरेट लेवल की जब हम बात कर रहे हैं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप मैनेजमेंट, जहां पर कंपनी के सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सभी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, कॉर्पोरेट स्टाफ बैठा हुआ है एट द हेड ऑफिस। सो दीस आर द पीपल हु टेक डिसीजंस फॉर द कंपनी एज अ होल। दैट इज द पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, दैट कॉर्पोरेट लेवल वो स्ट्रैटेजीज बनाता है, वो डिसीजंस लेता है जो पूरी कंपनी के लिए होते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं और पूरी कंपनी को इफेक्ट करते हैं। देन वी हैव बिजनेस और डिविजनल लेवल मैनेजर्स। ये वो मैनेजर्स होते हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनीज के इंडिविजुअल बिजनेसेस को देखते हैं। सो डिविजनल मैनेजर्स एंड स्टाफ they are there for managing different divisions। तो जैसे अगर हम टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात करें, so we know that they have many businesses। For example, they are into consultancy also, TCS, they are into steel also, they are into hotel business also, Taj Hotels, they are into automobile business also, right? Tata Motors। So टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अब हर एक बिजनेस इतना बड़ा है that उसे देखने के लिए, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए, उसे कंपटीटर से आगे निकालने के लिए, इस बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बिजनेस मैनेजर ही असाइन कर दिया है, या जिसे हम बोल सकते हैं डिविजनल मैनेजर। जिसका क्या रोल है, उसे ये पूरा का पूरा बिजनेस संभालना है, पूरी की पूरी डिवीजन संभालनी है। सिमिलरली टाटा स्टील को देखने के लिए अलग से पूरी की पूरी मैनेजमेंट की टीम होगी जो स्टील का बिजनेस देखेगी, जो स्टील बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाएगी, उसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगी, जो यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करेगी, जो ये देखेगी कि हमें इस डिवीजन को, इस बिजनेस को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाना है, राइवल कंपनी से आगे लेकर जाना है। सो हर एक बिजनेस दूसरे से डिफरेंट है। कंसल्टेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम स्टील, स्टील इज डिफरेंट फ्रॉम होटल, होटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑटोमोबाइल। डिफरेंट बिजनेसेस हैं, ये सारे बिजनेसेस इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं, ये सारी डिविजन्स इंडिपेंडेंट डिविजन्स हैं जिनके अपने कॉम्पिटिटर्स हैं, जिनकी अपनी स्ट्रैटेजीज बननी चाहिए। सो ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज जिनकी इंडिपेंडेंट डिविजन्स हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं, ऐसी कंपनीज को जब अपने ये बिजनेस को मैनेज करना है उसके लिए बिजनेस लेवल मैनेजर्स असाइन करे जाते हैं या डिविजनल मैनेजर्स असाइन करे जाते हैं। सो डिविजनल मैनेजर्स या बिजनेस लेवल मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, वो अपनी अपनी डिवीजन को, अपने अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं। जो भी कॉर्पोरेट लेवल ने स्ट्रैटेजी बनाई है उसे ध्यान में रख के बिजनेस लेवल मैनेजर्स, डिविजनल लेवल मैनेजर्स उस पर्टिकुलर बिजनेस जिसे वो देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। सो दे टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट मैनेजर्स डिसीजंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस। अब आ जाओ फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल पे। फंक्शनल लेवल वो लेवल है जहां पर होते हैं फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल स्टाफ। इनका क्या रोल है, इन्हें क्या मैनेज करना है, क्या इन्हें पूरी कंपनी को मैनेज करना है, नहीं। क्या इन्हें डिफरेंट बिजनेसेस को मैनेज करना है, इंडिविजुअल बिजनेसेस को, नहीं। इन्हें मैनेज करना है डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस को। सो अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के क्या क्या और रोल्स होते हैं, एक्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है। सो कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट हम समझ गए हैं। यहाँ पर कौन होते हैं, सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ हो गए, सीईओ हो गए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इस तरह से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव यहाँ पे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और बाकी सारा कॉर्पोरेट स्टाफ। नाउ दीस पीपल, ये सारे लोग दे आर ऑक्यूपाइंग एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। एपेक्स का क्या मतलब होता है, टॉप, हाईएस्ट। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग यहाँ से होना शुरू होती है और डाउनवर्ड लोएस्ट लेवल तक, फंक्शनल लेवल तक फ्लो करती है। सो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं वो कौन है, कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल ओवरसीज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द इंटायर होल ऑर्गेनाइजेशन। सीईओ को कंसीडर किया जाता है कि वो कौन है, गार्डियन ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर। सीईओ इज रिस्पांसिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी होती है। सो व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, अगर आपसे पूछ लिया गया, यहाँ से हमें केस स्टडी भी आती है। सो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का क्या रोल होगा, क्योंकि हमें पता है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजंस लेते हैं। सो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन, विजन, गोल्स बनाएंगे फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये डिटरमिन करेंगे कि हमें कौन कौन से बिजनेस करने हैं, देन उन डिफरेंट बिजनेसेस में कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, किस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करना
है ये कॉर्पोरेट लेवल डिसाइड करता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीडरशिप प्रोवाइड करना किसका रोल है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट का। शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना किसका रोल है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स एंड स्पेसिफिकली द सीईओ ऑफ द कंपनी। सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना, जैसे कि डाइवेस्टमेंट डिसीजंस, क्या कोई ऐसा बिजनेस है हमारा जो कि अनप्रॉफिटेबल हो चुका है, लॉसेस आ रहे हैं, अनमैनेजेबल हो चुका है, तो उस बिजनेस को क्या हमें डाइवेस्ट करने की जरूरत है, सेल करने की जरूरत है, क्या हम एक्विजिशन कर सकते हैं, हमें एक्सपेंशन कैसे करना है, मर्जर कर सकते हैं। तो इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स लेते हैं। एंड फाइनली फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस। ये जो वर्ड देख रहे हो ना आप, स्पैन, ये हमेशा दिया होगा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेसेस है सो दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर्स। लेकिन जहां पर आ गया ये वर्ड स्पैन, तो इसका मतलब होता है ऑल द बिजनेसेस। मतलब आपका जो एक व्यू है, मतलब जो आपकी नजर है, वो सारे के सारे बिजनेसेस पर बनी रहेगी, ऑल द इंडिविजुअल बिजनेसेस। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्पैन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस लेवल मैनेजर्स एंड देयर रोल। सो बिजनेस लेवल, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बिजनेस लेवल हमें कहां देखने को मिलेगा? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो मल्टी बिजनेसेस कर रही हैं, वहां पे बिजनेस लेवल मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। व्हाई? बिकॉज आप इतने सारे बिजनेसेस कर रहे हो। अब कॉर्पोरेट लेवल के लिए हर एक बिजनेस को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। सो वो अपने डिफरेंट बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए बिजनेस मैनेजर्स असाइन कर देते हैं। जो भी आपके इंडिविजुअल बिजनेसेस हैं, इन इंडिविजुअल बिजनेसेस को हम इंडिपेंडेंट डिविजन भी बोल सकते हैं, हम इन्हें सेल्फ कंटेन्ड डिविजन भी बोल सकते हैं। सेल्फ कंटेन्ड डिविजन मतलब सेल्फ मैनेज्ड डिविजन, इंडिपेंडेंट डिविजन। हर एक बिजनेस के अपने कुछ फंक्शंस हैं। सो दैट इज व्हाई उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट डिविजन, सेल्फ कंटेन्ड डिविजन। ऐसे बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास होते हैं बिजनेस लेवल मैनेजर्स। दे आर रिस्पांसिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। सो बिजनेस यूनिट क्या होता है? इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिविजन जिसके खुद के फंक्शंस होते हैं। बिजनेस लेवल मैनेजर हेड होता है पूरी डिविजन का, वो पूरी एक इंडिपेंडेंट डिवीजन संभाल रहा है, वो पूरा एक एसबीयू संभाल रहा है। एसबीयू क्या होता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, मतलब कंपनी का वो बिजनेस जो कि इंडिपेंडेंटली रन हो रहा है फ्रॉम दी अदर बिजनेसेस। क्या रोल है बिजनेस लेवल मैनेजर्स का? सबसे इंपॉर्टेंट रोल दैट ये ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करना मतलब कन्वर्ट करना जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। बेसिकली कॉर्पोरेट लेवल ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसे ध्यान में रख के उसे फुलफिल करने के लिए बिजनेस लेवल मैनेजर अपने अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजी बनाएगा। सो बिजनेस लेवल मैनेजर्स दे आर कंसर्न्ड विद स्ट्रेटजीज व्हिच आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर बिजनेस, जिसे हम एक यूनिट भी बोल सकते हैं, डिवीजन भी बोल सकते हैं, एसबीयू भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिवीजन, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, कुछ भी बोल सकते हैं। सो ओवरसीइंग द ऑपरेशन ऑफ अ होल डिवीजन और अ होल बिजनेस यूनिट और द एंटायर प्रोडक्ट लाइन। आपका रोल क्या है कि आपको अपने अपने डिवीजन, अपने अपने बिजनेस को ग्रो करवाना है। यू आर रिस्पांसिबल फॉर गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अपने अपने बिजनेस को कंपीट करवाना है, दूसरे राइवल से आगे निकलना है, अपने इंडिविजुअल बिजनेस में हाई प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं। दैट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस लेवल मैनेजर। एंड फाइनली वी हैव फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? दे आर रिस्पांसिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस। तो जैसे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स, परचेज फंक्शन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सो ये फंक्शंस देखना इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का जो स्कोप होता है, स्फीयर ऑफ रिस्पांसिबिलिटी मतलब स्कोप ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, वो काफी कन्फाइंड होती है। कन्फाइंड मतलब लिमिटेड, लिमिटेड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। और क्या रोल है फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का? अगर आपको फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का रोल लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं? सो ये हमें पता है दैट फंक्शनल स्ट्रेटजीज डेवलप करना अपने अपने एरिया में, एचआर मैनेजर एचआर स्ट्रेटजी बनाएगा, मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकंडली फुलफिलिंग द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स और बिजनेस लेवल मैनेजर्स ने जो स्ट्रेटजीज बनाई है आपके लिए, जो ऑब्जेक्टिव सेट करे हैं, आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन स्ट्रेटजीज को फुलफिल करना है, कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल प्लान्स को इंप्लीमेंट करना है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा माना जाता है दैट फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं है, इसीलिए फंक्शनल मैनेजर्स को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इन डिसीजन मेकिंग। बट दैट इज वेरी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज़ फंक्शनल लेवल मैनेजर्स ही हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। सो दे आर द वंस जिनके पास हर तरह की इंफॉर्मेशन है, बिकॉज़ दे आर क्लोजेस्ट टू द स्टेकहोल्डर्स, दे आर क्लोजेस्ट टू द कस्टमर्स। सो ये वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस लेवल को, जो प्रोवाइड करते हैं फॉर द कॉर्पोरेट लेवल को, जिसके बेसिस पर रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज एक्चुअली फॉर्मुलेट करी जाती है। सो वो इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है? फंक्शनल लेवल मैनेजर से। सो दिस मींस दैट इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हैं जो आगे चल के कंपनी की मेजर स्ट्रेटजी बन सकती है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फंक्शनल लेवल मैनेजर्स को इन्वॉल्व किया जाए बाय जनरल मैनेजर्स, बाय कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और यहां पे स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स की बात करी गई है, उनका क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इन तीनों क्वेश्चंस में भी यही पूछा गया है कि कॉर्पोरेट लेवल का रोल क्या है, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है। आपको यहां पर केस सिनेरियो दिया है। लेट्स गिव अ रीडिंग टू वन ऑफ द केस सिनेरियो। एबीसी लिमिटेड इज इन अ वाइड रेंज ऑफ बिजनेस व्हिच इंक्लूड्स अपैरल्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स। मतलब एक कंपनी है जो कि काफी तरह के बिजनेस कर रही है। द कंपनी इज लुकिंग टू हायर अ सूटेबल सीईओ। अब ये बड़ी कंपनी जो है अपने लिए एक सूटेबल सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ढूंढ रही है, उसे हायर करना चाहती है। कंसीडर योरसेल्फ एज एन एचआर कंसल्टेंट फॉर एबीसी लिमिटेड। अब आपको एक रोल दिया गया है कि इमेजिन करो आप एचआर कंसल्टेंट हो इस कंपनी में, और आपको टास्क दिया गया है टू एनलिस्ट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड विद द रोल ऑफ सीईओ। आपको ये बताना है एज एचआर कंसल्टेंट कि सीईओ के क्या-क्या फंक्शंस हो सकते हैं, एक्टिविटीज हो सकती हैं, रोल हो सकता है। नेम द स्ट्रेटेजिक लेवल दिस रोल बिलोंग्स टू एंड एनलिस्ट द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद इट। तो हमें ये भी बताना है कि जो सीईओ हैं ये कौन से स्ट्रेटेजिक लेवल में आते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल, और साथ ही में उनके रोल को भी बताना है कि सीईओ का रोल क्या होता है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज वो अंडरटेक करते हैं। सो हमें पता है दैट सीईओ कॉर्पोरेट लेवल पर आते हैं, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया द स्ट्रेटेजिक लेवल एसोसिएटेड विद सीईओ इज कॉर्पोरेट लेवल। हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करके वही लिख दिया जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और साथ में हम ये भी बता देंगे कि कॉर्पोरेट लेवल होता क्या है। सो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट्स ऑफ सीईओ, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ एंड ऑल दीस इंडिविजुअल्स ये क्या करते हैं? रिमेंबर द की पॉइंट, एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं। पूरी कंपनी के लिए डिसीजंस लेना इस लेवल से शुरू होता है। सो पहले हमने दे दी इंट्रो, अब बताना है कि इस रोल से कौन-कौन सी एक्टिविटीज एसोसिएटेड होती है, मतलब कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का रोल क्या होता है। तो आंसर तो बहुत सिंपल है। रिमेंबर कॉर्पोरेट लेवल का क्या रोल होता है? ओवरसीइंग द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज बनाना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गोल्स को डिफाइन करना, ये डिटरमिन करना कि हमें कौन-कौन से बिजनेस करने हैं, ये डिटरमिन करना कि किस बिजनेस में कितने रिसोर्सेज एलोकेट होंगे, एंड फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस। आ गया हमारा वो वर्ड जो हम कॉर्पोरेट लेवल के साथ एसोसिएट करते हैं, मतलब सभी इंडिविजुअल बिजनेसेस पर कॉर्पोरेट लेवल की नजर होगी। एंड एक और रोल था 6 पॉइंट, प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना, गाइड करना टुवर्ड्स द मिशन एंड विजन ऑफ द कंपनी। केस नंबर 2, केस नंबर 3 ये पढ़ेंगे तो इनमें भी यही सेम बात लिखी गई है। आपसे रोल पूछा गया है कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का, तो पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से लेवल की बात करी जा रही है। तो अगर आपने गलत लेवल आइडेंटिफाई कर लिया तो आप गलत रोल लिखकर आ जाओगे। सो बी वेरी पर्टिकुलर कि केस में दिया क्या है, इसीलिए कांसेप्ट क्लैरिटी जरूरी है। नाउ फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर, एंड इट इज अ न्यू टॉपिक दैट हैज बीन एडेड अंडर न्यू स्कीम। सो द टॉपिक इज नेटवर्किंग ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन 3 लेवल्स। 3 लेवल्स हमने समझ लिए, कॉर्पोरेट लेवल होता है, बिजनेस लेवल होता है, जिसे हम डिविजनल लेवल भी बोलते हैं, और थर्ड होता है फंक्शनल लेवल। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो 3 लेवल्स हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल लेवल्स, ये आपस में किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं, किस तरह की रिलेशनशिप
रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है। सो इन लेवल्स में हमें 3 तरह की रिलेशनशिप देखने को मिलती है। सो द फर्स्ट इज फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। अब ये जो रिलेशनशिप है ये एक इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स, बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस। सो फॉर एग्जांपल ये हमारी है कॉर्पोरेट लेवल, उन्होंने डिसाइड किया दैट हम 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करेंगे, ये हमारी 3 डिफरेंट डिविजन्स होंगी। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कपड़े बनाती है, तो वो कहती है कि हम 3 तरह के क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एथनिक, वेस्टर्न वेयर एंड इंडो वेस्टर्न। और ये जो तीनों डिविजन है ये इंडिपेंडेंट डिविजन है। एथनिक डिविजन को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिविजनल मैनेजर ए होगा, वेस्टर्न वेयर को मैनेज करने के लिए हमारे पास डिविजनल मैनेजर बी होगा, सिमिलरली डिविजनल मैनेजर सी। सो अब ये जो तीनों डिविजन हैं ये क्या है, ये इंडिपेंडेंटली रन हो रही हैं। प्रोडक्ट ए इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट बी इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट सी, और वी कैन से डिवीजन ए इज डिफरेंट फ्रॉम बी इज डिफरेंट फ्रॉम सी। ये तीनों इंडिपेंडेंटली रन हो रही हैं, तीनों के अपने अपने बिजनेस मैनेजर्स हैं या डिविजनल मैनेजर्स हैं, डिविजनल हेड्स हैं, जिन्हें हम बिजनेस लेवल मैनेजर भी बोलते हैं। ऐसे ही फंक्शन के बेसिस पर भी हो सकता है दैट अगर आप कपड़े बनाते हो, इफ यू आर इनटू क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, तो आपकी जो कॉर्पोरेट लेवल टीम है वो बोलती है कि कपड़े बनाने के लिए हमें डिफरेंट फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। हमारे पास एक डिजाइन डिपार्टमेंट होगा, हमारे पास एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, हमारे पास एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी होगा, हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, राइट। फाइनेंस भी तो देखना है, हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट भी होगा। तो अब हर एक फंक्शन इंडिपेंडेंट फंक्शन है, हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, हर फंक्शनल डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए फंक्शनल मैनेजर्स असाइन कर दिए जाएंगे, और ये जो फंक्शनल मैनेजर्स हैं या ये जो डिविजनल मैनेजर्स हैं ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे। सो बस ये होता है फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप, जो कि इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप डिपेक्ट करता है। ईच फंक्शन और डिविजन इंडिपेंडेंटली रन हो रही है, हर एक फंक्शन या डिविजन के हेड होंगे, डिविजनल हेड या फंक्शनल हेड, जिसे हम बिजनेस लेवल मैनेजर भी बोलते हैं। ये जो मैनेजर्स हैं ये रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टली किसे, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को, जो कि पूरा बिजनेस हेड है, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। और फंक्शंस किस तरह के हो सकते हैं, लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। डिविजन्स कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो उतनी हम डिविजन्स क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। अब हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप हो गया रिलेशनशिप बिटवीन पीपल हु आर एट द सेम लेवल। सो ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। यूजुअली क्या होता है, स्ट्रक्चर हायरार्किकल होता है ना। हमारे पास एक टॉप लेवल होगा, फिर हमारे पास एक मिडिल लेवल है, बिजनेस लेवल होगा, फिर हमारे पास होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स। सो इस तरीके से हर एक लेवल पर डिसीजंस लिए जाएंगे। बट हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर है, देयर इज नो लेवल, एवरीवन इज एट द सेम हायरार्किकल पोजीशन, व्हिच मींस टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल सब मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं। बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर है, जहां पे आइडियाज को encourage किया जा रहा है, मिलकर सब आइडियाज देते हैं। सो इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, एवरीवन इज एट द सेम लेवल, टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल एम्प्लॉइज सब एक ही हायरार्किकल पोजीशन पर है, मतलब सेम लेवल पर है। एक ओपन और ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर है, आइडिया शेयरिंग हो रही है, इनोवेशंस हो रही हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज मोस्ट सूटेबल फॉर स्टार्टअप्स जो अभी अपना कुछ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आपको स्पीड की जरूरत है, आपको प्रॉम्प्टली स्पीडली आइडियाज लेकर आने हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। सो अगर यहाँ पर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, देयर इज अ कंपनी, एक वीडियो गेम कंपनी है वैल्व, ये फ्लैट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। एंड फाइनली द लास्ट रिलेशनशिप, नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, इज मैट्रिक्स रिलेशन। ये कैसा रिलेशनशिप है जहां पे हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अथॉरिटी हो रहा है, एट द सेम टाइम वर्टिकल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड अथॉरिटी। यूजुअली क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कमांड, जो आप प्लस 2 में पढ़ते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, दैट सिर्फ एक सुपीरियर होना चाहिए। आप सिर्फ एक सुपीरियर से ऑर्डर लेंगे और एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे, बिकॉज़ अगर एक से ज्यादा आपके बॉसेस होंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट मैट्रिक्स रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर 2 बॉसेस होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाई इसे कहते हैं मैट्रिक्स। सो यहां पर क्या होता है, व्हाट इज द मेन फीचर, देयर आर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप्स हियर। ये स्ट्रक्चर टीम बेस्ड होता है। सो जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, मे बी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे अब एक नया प्रोजेक्ट मिला है, एक रोड कंस्ट्रक्ट करना है, ब्रिज बनाना है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग तैयार करनी है। सो जैसे जैसे आपको नए प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, आप क्या करते हो, आप अपने परमानेंट डिपार्टमेंट्स, जो आपके फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आप अपने डिपार्टमेंट से ही, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, हर डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स को चूज करोगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से भी आपने एक्सपर्ट्स ले लिए, इंजीनियरिंग से भी एक्सपर्ट्स ले लिए, आर&डी से भी एक्सपर्ट्स ले लिए, फाइनेंस से भी एक्सपर्ट ले लिए, और आपके पास तैयार हो गई एक पूरी की पूरी टीम। अब ये टीम काम करेगी नए प्रोजेक्ट पे। सो द टीम्स आर क्रिएटेड ओनली फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे जो टीम्स होती हैं उनके मोर देन 1 बिजनेस मैनेजर हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर आल्सो एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आल्सो, फंक्शनल मैनेजर्स आल्सो। सो एम्प्लॉइज यहाँ पे 2 बॉसेस को, मल्टीपल बॉसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं रादर दैन 1। सो दिस स्ट्रक्चर कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, स्पेशली फॉर द स्मॉलर कंपनीज, स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बट जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, लार्ज कंपनीज, कॉन्ग्लोमरेट्स लाइक टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड अदर लार्ज कंपनीज लाइक स्टारबक्स, फिलिप्स, ये इस तरह का रिलेशनशिप फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए ये स्ट्रक्चर काफी यूजफुल है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द कांसेप्ट्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको समझ आया, यू वर एबल टू बिल्ड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कांसेप्ट्स, आल्सो यू वर एबल टू फोकस ऑन द की पॉइंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज टेक अ ब्रेक, relax for some time, and then practice some questions which we have not covered in the class. Practice these questions as you can see on the screen, question number 3, 4, 9, 11, 17, 19, 23. कोई डाउट होता है, ask me in the doubt classes.